السلام علیکم, صبح بخیر اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ جو میرے بچپن کا زمانہ تھا, جس میں اگر میں 90s کے زمانے کی بات کروں تو وہ اتنا مزیدار زمانہ تھا, کیونکہ اس میں میں نے دیکھا ہے کہ ہماری امیاں بڑی مہمان نواز ہوا کرتی تھیں. آج کل تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے کوئی رشتے دار آپ کے گھر کسی دوسرے شہر سے آپ کے گھر آ جائے تو آپ کہتے ہیں اوہ ہمارے گھر تو جگہ ہی نہیں ہے, بچے اپنے کمرے سے کہاں نکلتے ہیں. اس وقت کی ٹینشن نہیں تھی. مطلب پتہ نہیں کون کون سے شہر سے, آئی ریممبر ہمارے گھر میں ایک بڑا ایونٹ تھا اور میرے ابو کے کزنز بہت دوسرے ڈفرینٹ شہروں سے وہ آئے, میری امی کے رشتے دار بھی ڈفرینٹ شہروں سے آئے اور کافی زیادہ لوگ تھے. گھر ہمارا اتنا بڑا نہیں تھا, لیکن ڈرائنگ روم میں بستروں کی بھرمار تھی. سب ڈرائنگ روم میں گھسے ہوئے تھے. کمروں میں جو ہے وہ ایکسٹرا وہ بسترے لگے ہوئے ہیں اور باقی جو کچھ بزرگ ہیں وہ چھت پہ چلے گئے. مجھے آج بھی بڑی ویوڈ میموریز ہیں ان دنوں کی کہ ایسے مہمان نوازی ہوا کرتی تھی اور کچن میں لگتا تھا کہ سب خواتین کام بانٹ لیتی ہیں. آج کل تو یہ جو نا کہ آپ کو ایکسٹرا چائے کا کہہ دیا جائے تو آپ کا فوراً منہ بن جاتا ہے. آج کل کی تو مینرز میں یہ بات بھی آ گئی ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر جا رہے ہوں تو آپ ان کو پہلے کال کریں, وچ از رائٹ. اور میں بھی یہ کہتی ہوں کہ کیونکہ دیکھیں آہستہ آہستہ ہم ایٹیکیٹ سیکھ رہے ہیں, لوگوں کی کمٹمنٹس بھی ہوتی ہیں, تو اس لیے اگر آپ کسی کے گھر جائیں تو فون کر کے جائیں. لیکن پہلے زمانے میں فون تو ہوتا نہیں تھا اور کسی کے گھر فون ہوا کرتا تھا, رشتے دار بتاتے نہیں تھے, وہ ایک دم گھر کی بل بجتی تھی, گھنٹی بجتی تھی, دروازہ کھولتے تھے تو ایک سرپرائز ہوتا تھا. اور وہ چاہے کوئی بھی پہر ہو, وہ جو مہمان آتا تھا وہ گھر سے کھانا کھائے بغیر نہیں جاتا تھا. یہ ہوتی تھی, اگر میں اپنے بچپن کی بات کروں تو اس ٹائم کی مہمان نوازی. ہماری امیوں کو بہت شوق ہوتا تھا مہمان نوازی کرنے کا. اب لوگ آتے, لوگ پوچھتے ہیں اچھا چائے پینی, نہیں پینی, ہو کیوں پی کر ہے, اچھا کوئی بات نہیں. اگلا بندہ کہتا ہے اچھا مجھ سے دوسری بار پوچھ لیتے میں راضی ہو جاتا, لیکن نہیں پوچھا جاتا. سو آج جو میرے ساتھ میری یہاں پہ سیلیبریٹی گیسٹ یہاں پر موجود ہیں, میں اسپیشلی کچھ ایسی خواتین کو اپنے شو میں بلا رہی ہوں جن کو بہت شوق ہے مہمان نوازی کا, اور وہ خواتین جن کی مہمان نوازی سے دنیا واقف ہے. تو آج کا شو دعوتوں کے حوالے سے اور دعوتوں میں ہونے والے کچھ بلنڈرز کے حوالے سے, اور انہوں نے اس بلنڈرز کو کیسے مینج کیا. ہو جاتا بھائی کبھی کبھی ایسا ہوا, ایک بار تو ایک بلنڈر میرے ساتھ ہوا, کیونکہ میں کھانا تو ایسا بناتی نہیں, بٹ ہاں ایک بلنڈر ایسا ہوا جو کہ مینج ہی نہیں ہو رہا تھا. 2 ہی میں نے مہمان بلائے اور دونوں مہمانوں کا مجھے اینڈ میں پتا چلا کہ ان کی تو آپس سے بنتی نہیں ہے. بس بھائی کھانا میں نے کھایا نہیں, بٹ ٹینشن میرا پیٹ ضرور خراب ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا میرے گھر میں, بٹ مینج ہو گیا. بات تو صحیح ہے کہ کھانا تو ایک بہانہ ہے, اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنے بھی رشتے دار ہوں اپنے پیارے ان کو ذرا جوڑ کے اور ذرا مزید سینے کے قریب ذرا لگا کے رکھیں. رباب مسعود ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. کیسی ہیں فائنلی رباب آج میرے فائنلی ہاں فائنلی میرے شو میں کہتے ہیں ڈکا کھل گیا. ہاں بالکل بالکل پنجابی میں تو وہ آج رباب میرے ساتھ موجود ہے. شیف فرح ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. اور فرح کے تو آپ کو پتا ہے کہ جو فرح کے بنائے ہوئے کھانے ہیں وہ جب دسترخوان پہ لگتے ہیں سجتے ہیں تو کیا ہی بات ہے. ایک ہماری اور بہت پیاری سیلیبریٹی گیسٹ ہے جی, کہ جن کے وہ ان کے انسٹاگرام پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو ان کی کراکری میں بھی کتنا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. پھر جو ان کے گھر میں دعوتیں ہوتی ہیں, وہ جب عید کی دعوت ہوتی ہے وہ بھی ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہماری بہت ہی پیاری سما فیصل. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک جی, آپ بتائیں. عید کے 4 دن آئی تو لگے عید لگ رہی ہے. السلام علیکم. بس آپ کو پتا ہے نا, پہننا اوڑھنا جو ہے نا, اور بس کچھ سجنا سورنا جو ہے نا, وہ میری پتہ نہیں گھٹی میں ہی آ گیا. میں کہتی ہوں ہر موقع پر ماشاء اللہ. آپ کی بھی تو بڑا خوش ہوتی ہوں گی, کیونکہ امیوں کی بڑی خوشی ہوتی ہے نا کہ بچیاں بڑی جب تیار ہوتی ہیں, ہاں تیار ہو کے گھر آتی ہیں. ہاں وہ تو ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ بھائی جب بھی آؤ, بھلے قریب ہی ہو گھر, جب بھی آؤ نا تو لگے کہ اپنے سسرال سے اپنے میکے آ رہی ہو. تیار آپ خوش ہیں, اپنے خوش ہیں. اچھا میرے تو جب شادی ہو کے میں آئی تو میری جو نانی ساس تھیں انہوں نے کہا مجھے کہ بھائی نئی نئی دلہن ہے تو ابھی زیور ویور پہن کے رکھا کرو. تو مجھے تو موقع مل گیا. میرا پورشن اوپر کا تھا. جب میں صبح اٹھتی تھی تیار ہوتی تھی, ایک بڑا سیٹ بھی پہنتی تھی, سارا دن پہن کے بیٹھی رہتی تھی. تو ہاں لیکن دیکھیں نا یہ یادیں آج آپ اس کو چیریش کریں. چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں, میں تو سمجھتی ہوں یہ, اور وائی ناٹ, کیوں نہ کریں, ہے نا. بالکل زندگی ایک ہی دفعہ ملنی ہے اور بہت چھوٹی سی ہے, مختصر سی ہے. بالکل اس کو بس اسی طرح انجوائے کر کے گزارنا, انجوائے کر کے بھرپور طریقے سے گزار کے. میں دیکھ رہی ہوں آج کی ہماری جو چوتھی سیلیبریٹی گیسٹ ہیں جناب, وہ بھی آ گئی ہے فائنلی وہ بھی پہنچ گئی ہیں. آج ہے جناب بہت پیاری ہماری سعدیہ امام. السلام
اور میں صبح 8 بجے کی تیار ہو کے بیٹھی ہوئی ہوں. پلیز, میں اتنی ایکسائٹیڈ اس شو میں آنے کے لیے کہ میں آج پوری تیار ہو کے کہہ رہی ہوں آج گاڑی کیوں نہیں آئی. اچھا گاڑی مجھے بھی آج لیٹ لینے آئی ہے. آج میں بھی خود ہی کال کرے جا رہی تھی کہ کیا ہو گیا, میں تیار بیٹھی ہوئی, گاڑی نہیں آ رہی ہے. انتظام اس کا ایکشن لیا جائے. اچھا لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو آج بھی سیلیبریٹی گیسٹ موجود ہیں کسی کی گھر ہم لیٹ نہیں پہنچتے. نہیں, بالکل بھی نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اچھا یہ مارننگ شوز میں میں اکثر جب جاتی ہوں تو میں آدھی تو تیار ہو کر جاتی ہوں, بعض اوقات پوری طرح تیار ہو کر, اور میں ٹائم دیکھتی رہتی ہوں کہ ابھی تک آپ کے گیسٹ نہیں آئے. اب وہ جو گیسٹ آتے ہیں نا اڑے پھوڑے آتے ہیں اور بیٹھ کے یہ کیا میں تو کبھی شو میں جا ہی نہیں سکتی اس طرح سے, مجھے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ہماری اماں کہتی تھی جھاڑ منہ پہاڑ اڑ کے چلا. سیریسلی ہاں, میں ہمیشہ گاڑی کو ارلی کال ٹائم دیتی ہوں کہ آپ جلدی آئیں تاکہ میں سکون سے تیار ہوں. وہ پینک مچا ہوا ہوتا ہے, آپ کانفیڈنٹلی بیٹھے نہیں آتا. بالکل بات صحیح ہے. اچھا کیونکہ آج کا تمہارا شو اسپیسیفکلی ہے بھی دعوتوں کے حوالے بتانا تھا کہ دعوتوں کے ساتھ سے تیار ہو کر آتی, میں بھی کوئی اچھا سا دعوتوں والا آلریڈی لگ رہی ہے, وہ بھی اتنی زبردست لگ رہی ہے. اچھے دونوں کے سالڈ کلرز لگ رہے ہیں جی, اور بات تو ویسے بھی کچھ بھی پہن لینا, اور وہ سادیہ بھی ایسی, ہم کچھ بھی پہن لیں آپ لوگوں پہ اچھا ہی لگتا ہے. اور سادیہ ماشاءاللہ میں نے تو بڑا ٹائم سادیہ کے ساتھ گزارا ہوا ہے, اور میں ہر شو میں جب بھی ان کا ذکر ہوتا ہے آپ کے پیٹ پیچھے بھی تعریف بہت تعریف کرتی ہوں, کیونکہ ایک گھر میں جو ہاسپٹیلٹی ہے اور جو ایک آرگنائز کرنا ہر چیز کو اور پنکچویلٹی, وہ میں نے ان کے گھر میں دیکھی. کیونکہ میں شروع میں جب کراچی آئی تو انہی کے گھر رکتی تھی میں, تو یہ شوٹ پر ہوتی تھی تو باہر پرچی لکھ کر لگا دیتی تھی, صبا جی کو اس سے پہلے نہیں اٹھانا, اور ناشتے میں یہ لیں گی. میں نے کہا مجھے لگتا ہے میں ہوٹل میں رکی ہوں, اور اسی طرح ہوتا تھا. ماشاءاللہ بہت محنتی ہیں بھائی, بہت محنتی بھی ہیں, اور ان کی مہمان نوازی کے دسترخوان کے علاوہ بھی یہاں پہ بھی وہ ان کی امی کے ہاتھ کے کھانے کھائے ہوئے ہیں ہم نے. امی چٹنیاں امی سے آئی ہیں, اور امی کو شوق بھی بہت تھا, مطلب کھلانے کا, بنانے کا. کل میں ایک فنالے پہ تھی رات کو, تو میں شیف کو یہ بتا رہی تھی کہ جب امی حیات تھی تو میرا صرف ایک کام تھا, جیسے میں گھر پہنچتی تھی نانو کہتی تھی مجھے, نانو آج ہم نے ایک اور ڈش, وہ ایک ہمارا چینل ہے مسالہ ٹی وی, آپ کو پتا ہے اس پہ ڈھیر سارے کھانوں کی, آج ہم نے یہ ریسیپی بنائی ہے, ان کو فون کر کے بتاؤ ہم نے بنا دی. ہم میں پھر وہاں فون کرتی تھی, ان کا مجھے نمبر دیجیے, میری ماں نے یہ ریسیپی بنائی. اب وہ اچھی بنتی تھی تو وہ بتاتی تھی, اس میں کچھ ایڈ آن کرتی تھی وہ بھی بتاتی, تو انہیں بہت شوق تھا. اچھا ویسے ایک وہ ٹائم تھا نا کہ جب فون سے ہوتے تھے, مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر اگر کوئی بھی مہمان اچانک بیل بجتی تھی, کبھی کبھی کھانے کے ٹائم کے بعد بھی بیل بجتی تھی, اور کوئی ہمارا رشتہ دار کھڑا ہوتا تھا تو ایسے خوشی سے بالکل جیسے کوئی سرپرائز ملا ہے, اور وہ اندر آ رہے ہیں, کھانا دوبارہ سے ان کی روٹیاں جو ہے وہ توے پہ علیحدہ سے ڈل رہی ہیں, اور اب اس وقت مائنڈ بھی نہیں کرتے تھے کہ جی اب تو مائنڈ کیا جاتا ہے, کیا بنانے, جو بھی ہم بچے بھی خوش ہو جاتے تھے کہ وہ ہمارے گیسٹ. میرے بچے کہتے ہیں کہ ہم جب بھی کبھی پراٹھے وغیرہ کھائیں تو وہ ضرور میری بھابھیوں کو یاد کرتے ہیں کہ اماں وہ دلہن بھابھی, وہ اب نانی دادی ہو گئی لیکن ان کو سب دلہن بھابھی کہتے ہیں. دلہن بھابھی کے اور سلمہ بھابھی کے ہاتھ کے پراٹھے ہم کھائے چلے جاتے تھے, لڑکے بیٹھے ہوتے تو بناتی رہتی تھی اور تھکتی بھی نہیں تھی. ابھی ہم طاہرہ باجی سے کہیں نا, ہمیں 2 سے 4 دوست آ رہے ہیں تو وہ ان کا منہ لٹک جاتا ہے, اور وہ خود کچن میں ہوتی تھی. میں نے کہا بھائی وہ محنت سے نہیں بنا رہی ہوتی تھی, وہ محبت سے بنا رہی ہے, اور محبتوں سے جب بنتی ہیں نا چیزیں تو اس میں ذائقہ اور خلوص کا جو ذائقہ ہوتا ہے. آج کل جو بنا رہی ہوتی ہے کہ کام کب ختم ہوگا, یہ سوچ کر بنا رہی ہوتی ہے کہ کب ہم لوگ وائنڈ اپ کریں, کب. میں اب لاہور گئی تو ابھی میں کچھ زیادہ لاہور رہ رہی ہوں الحمدللہ, ماشاءاللہ بہت خوش ہوں. دادو میں گئی گھر, آپ یقین مانے, اور مجھے اتنا مزہ آیا مبارکباد دینے. جب ٹرالی سج کر آئی تو میں نے کہا صبا جی سب بازار گئے, کہتی سب گھر تو اتنا اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کے گھر سبھی اب مبارکباد دینے آ رہے تھے تو وہ ایک تیاری جو پہلے سے ہوتی ہے نا, کیونکہ اب آپ مجھے وہ لوگ اتنے برے لگتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی فنکشن ہو یا ڈھولکیاں ہو یا ایون کوئی بھی خوشی ہو, آپ کو پتہ ہے لوگوں نے آنا ہے, تو تھوڑی سی پریپریشن میرا خیال ہے کہ ہونی چاہیے. تو وہ ان کے یہ خود اتنے سلیقے مند, اگر یہ تعریف کریں تو اس کا مطلب یہ کمپلیمنٹ ہے. آپ ذرا مجھے بتائیے جو اس ٹائم کی میں ایرا کی میں بات کر رہی ہوں کہ جس ٹائم پہ مہمانوں کا ایک
ایک دم سے آ جانا برا نہیں لگتا تھا اور لوگ خوش ہو جاتے تھے. تو وہ آپ نے وہ ٹائم اب تک کیسے گزارا جس میں کہتے ہیں نا امیاں بھی ذرا بادر نہیں ہوتی تھی؟ بالکل بھی نہیں ہوتی تھی. اور پہلے تو خاندان کنبے کے کنبے سارے آتے تھے. اب تو آپ کہتے ہیں کہ جی کپل آئیں گے یا اب فلانے اتنے گیسٹ آئیں گے. پہلے تو آپ کے بچوں کے بچے آگے اور سارا پورا کنبا آتا تھا, تو وہ تو ایک مزہ ہی اور ہوتا تھا. کنبے کا لفظ ہی ختم ہو گیا, کنبے کا لفظ ہی آپ سننے کو نہیں آؤٹ ہو گیا. پہلے ایسا ہوتا تھا, تو وہ ایک ایکسائٹمنٹ الگ ہی ہوتی تھی. کہ ہمارے یہاں ابھی تک یہ کنبے کا لفظ ہے. بالکل. میری نانی کیا جب سب جمع ہوتے تھے نا عید پہ, تو کوئی 100 کے قریب ہم, کیونکہ 5 ماموں کے بچے, پھر ہمارے یہاں جڑواں بہت ہیں. 15 کزنس تو میرے جڑواں یعنی کہ 30 ہو گئے ماشاءاللہ, ہے نا, 30 ہو گئے. پھر ان کے بچوں کے بھی بچے, تو نانی پر نانی بھی تھی. اور اس تو جب ان کے جمع ہوتے تھے نا, تو یقین مانے عیدی کے کیا ہوتا, ابھی تو دیے تمہیں, نہیں مجھے نہیں دی, وہ نہیں ہے یہ والا. آپ کے ہاں تو شادی میں کسی غیر کو بلانے کی ضرورت ہے, سسرال میں بھی کسی کو نہیں کہہ رہا بہن بھائی کو. اور یقین مانے تو یہ تو خیر ایک ہوتا ہے نا خاندان جو ایکسٹینڈ ہوا شادیاں کر کے بہوؤں کا, تو وہ والا تھا. لیکن میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں کہ اس وقت اتنا مزہ آتا تھا کہ سب بہویں, سب بیٹیاں ایک ایک ڈش لے کے جاتی تھیں, اور ایک جو مین ڈش ہوتی تھی یعنی کہ بریانی ہو یا جو بھی, اس کی دیگ بنتی تھی, کیونکہ اتنے لوگوں میں وہ جاتے تھے. لیکن وہ جو دسترخوان بچتا تھا اور ننا ہیڈ کرتے, تو وہ ابھی بھی ہمارے پاس پرانی تصویریں کہ آگے پیچھے نیچے, اور بالکل اینڈ پہ جا کے کوئی نا تصویر کھینچتا تھا کہ سب ہال کے اندر آئے. وہ اب میں نے اپنے ساتھ لیا ہے کہ اب سب عید پہ میریاں جمع ہوتے ہیں. اب لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں, کچھ لوگ باہر شفٹ ہو گئے ہیں, لیکن اب میں کہتی ہوں, میری ممانی ہر بار جب آتی کہتی تمہارا کام نہیں, تم چھوٹی ہو. میں نے کہا آپ لوگوں کے جب دور تھا آپ لوگوں نے کیا, اب یہ کام کسی کا ہوتا نہیں ہوتا. بھنو خوش ہو رہی کیونکہ وہ آپ سے بڑی تھی, تو وہ اس لیے مجھے ہوتا ہے کہ اب سب عید پہ تیسرے دن میرے گھر لنچ پہ میرے ماموں اور میرا پورا ننیحال جمع ہوتا ہے. اچھا, یہ بھی ہم آپ کی گھر کی ایونٹ کی پکچر ہے وہ بھی ذرا شیئر کریں گے. میں یہ اکثر سوچتی ہوں کہ آج کل کے جو لوگ ہیں نا, وہ تھوڑا جج بھی کرتے ہیں کہ اچھا کیا کیا تھا کھانے میں, اچھا یہ تھا. میں اپنے بچپن کی جو میں اپنی اس کی برتھ ڈے کی پکچرز دیکھتی ہوں, تو اس میں کیک پڑا ہوا ہے, اس میں پیٹیز پڑے ہوئے ہیں, اس میں مٹھائی ہمارا پڑی ہوئی ہیں, ایک بنانا ہوتا ہے, سینڈوچز پڑے ہوئے ہیں, پھل پڑے ہوئے ہیں, نارمل سی چیز ہے. اور اتنے لوگ ہیں, کوئی جج نہیں کر رہا. نہیں پہلے بالکل بھی نہیں ہوتا تھا. اب تو اچھا 4 صرف ڈشز رکھی ہوئی ہیں, اچھا بس 2 اور ہوتی ایسے ہوتا ہے. اب تو یہ دیکھیے جی, یہ ایک بڑی ساری گرینڈ پکچر ہمارے سامنے آئی ہے جی. یہ عید کی تصویر ہے. یہ میرے بڑے ماموں ممانی سب میرے کزن جو اب اس وقت یہاں موجود ہے پاکستان میں, وہ لوگ موجود ہیں. یہ میرے بہنوئی سارے. اس کے ساتھ آپ لوگوں کو میں نے کیرم بورڈ کی بھی تصویریں دی تھی. مطلب ہمارے یہ پورا ایک ویڈیو بھی ہے جس میں میں نے پوری سیٹنگ کی بھی دی تھی کہ وہ پکچر بھی لگا دیں گے, اس میں لوپ میں چلتی رہی. ہم نے اتنے مزے کی, اب اتنا مزہ ٹوٹل یہی کافی لوگ ہیں بھائی. تو اتنے لوگ کے لیے پھر گھر میں کھانا پکتا ہے, پھر آپ باہر گھر میں. ہمارے یہاں کبھی بھی باہر سے کھانا نہیں آیا. یہ ایک میری یہ دیکھیں, یہ گھر میں ہی بنتا ہے. قیمہ ہے, آلو ہے, چنے میں دیکھ رہی تھی. میری ایک دوست ہے عظما, وہ بھی فیملی اس کی آئی ہوئی ہے, تو قیمہ بنانا اس کا کام ہے, وہ لے کر آتی ہے, بہت مزے کا بنا کے لے کر آتی ہے. یہ ایک اور دعوت ہے, اس کی تصویر ہے. اوکے ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ سے ٹھیک ٹھاک جی. ہمارے یہاں تو گھر میں جیسے زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں پھر ابو مجھ سے پوچھتے ہیں نان کتنے منگوانے. یہ نان تو آئیں گے نا. میں آپ کو بڑی صحیح بات بتاؤں, کاؤنٹ کون صحیح کرتا ہے. اچھا, یہ نان کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے نا, ہمارے بھی جب کھانا ہوتا ہے, جی اب کھانا بن رہا ہے, کھانا تو بن گیا, اور صبح سے دماغ میں ہوتا ہے نان کس ٹائم پر آئیں, کس ٹائم پہ وہ گرم رہے, کہ کس ٹائم پر آئیں وہ گرم رہے. اور اب میں ابھی میرے ماموں کی بیٹی کی شادی تھی, تو اس کے بڑے فنکشن ہوئے, کبھی مطلب 8-9, کبھی کسی ممانی کے, کبھی نانوں کے, کبھی ڈھولکیاں ہو رہی ہوگی, بہت. ہاں, ڈھولکیاں, بڑے فنکشن ہوئے. تو میں نے جو ادھر اچھی بات پک کی, کیونکہ وہ سب لوگ بھی وہ ہیں جو گھر میں کھانے بننے والے, کہ انہوں نے لائیو تنور رکھ لیا. باقی چیزیں تو بنا لی, لائیو تنور رکھا ہے. اب وہ کھانے سے زیادہ آخر میں وہ جو نان آ رہے ہوتے ہیں نا, گارلک نان, چائے کے کلونجی والے نان, تو میں نے اب گھر میں تل کے اس کے بعد تہیا کیا اور سوچا
कि दावत भले 35 लोगों की हो या 50 या 100 की, लाइव नान ये अच्छा मशवरा ये दिया सुन लें फैसी, अब लाइव नान ये होती है, ठंडा हो गया, गर्म हो गया ना। टेलीविजन पे कह दिया बेचारे, आप क्या कह सकते हैं। लेकिन वो जो काउंट करना होता है ना मेहमानों को कि अच्छा इतने नान आएंगे, इतनी हिसाब किताब क्या है, इतनी चपातियां हैं, हमारे घर में हमारे बहनोई राशिद भाई, उनको राशिद भाई से मतलब आप ऐसे करके ना राशिद भाई इतने लोग कितना लेकर आना है, नान इतने ले आए, लाल रोटी लाएगा, नान नहीं लाएगा, वो नहीं खाता, लाल रोटी लाएगा, चपातियां इतनी ले, और इतना एक्यूरेट है। अच्छा, एक बंदा होता है फैमिली में जिसमें हिसाब किताब बड़ा पता होता है। राशिद भाई तो कमाल है। आप इनको फोन करिए। हाँ राशिद भाई बड़ा अंदाजा है। राशिद भाई अभी लाहौर में क्या फंक्शन, हाँ गोद भराई थी ना मेरी बहू की, तो मैंने सब कुछ तो खुद बनाया घर में। और इधर से मैं राशिद भाई से कहा, मैंने कहा वो जो कीमा है ना, दम का कीमा वो मुझे चाहिए। अब पहले मैंने उन्हें कहा कि 5 किलो बना दें, फिर मैंने उन्हें कहा 7 किलो बना दें, फिर मैंने कहा अच्छा आप ऐसा करें 9 किलो बना दें। ये कीमा कराची में बनना था और फिर लाहौर लेके फ्रीज करके लेके गई थी। मेरी बहन कुकिंग बहुत अच्छी करती है, उनको बहुत तो पसंद है। मैंने कहा कि आप ऐसा करें राशिद भाई 11 किलो कर दें। अच्छा जब वो लेकर आए, हाँ बकरा ही हो गया, बकरा ही हो जब वो गया। लेकर आए कहते हैं और क्या क्या है, मैंने कहा ये है ये है ये है ये है ये है, कहते हैं मैं 7 किलो बना कर ले आया। मैंने कहा हाय कम ना हो जाए, बहुत मजे का होता है। नहीं कम होगा। और आप यकीन करें मेरे से झूठ निकल गया। अब सभी को पता होता है कि मैं ही बनाती हूँ घर में खाना। तो 4-5 डिशेस थी, इस दफा मैंने बहुत डिफरेंट बनाया। पालक पनीर की बजाय पालक कोफ्ते बनाए, और चने के अंदर मैंने अंडे डाले, और चिकन कढ़ाई बनाई, और वाइट मटन बनाया। सब्जी सारा आपने खुद बनाया? खुद। मैं 50-100 लोगों का बनाना कोई मेरे खाना बनाती है, मैंने जिनके हाथ का खाना खाया, मैं तो रिकॉर्डिंग पे खड़ा कर करके उनसे बनाती। तो मैंने ये सब बनाया हुआ था, और कीमा था। अब सबको पता होता है कि सबा ने खुद बनाया, सबा ये भी बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा है। और जब ड्राइंग रूम में ये भी मेरे अभी शादी हुई है ना, ये मेरी खाला है प्यारी सी, और ये मेरी मोमानी है। ये जो है ना, इनका आप कभी घर देखें, इनके खाने देखें, आप कहेंगी कि यार ये इस दुनिया की खातून नहीं है। क्या जबरदस्त खाने। ये अभी की शादी की है पिक्चर्स, माशाल्लाह। ये सब मेरे जान के टोटे हैं, मेरे अपने। माशाल्लाह। तो आंटी ने मुझसे पूछा कि सबा सब चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ना मुझे कीमा बहुत अच्छा लगा है, मुझे उसकी रेसिपी दे दो। मैं कहा आंटी आपसे भी जब मैं कहती हूँ आंटी इसकी रेसिपी दे दें, तो आप कहती हैं तू आके खा ले, तू आके खा ले, या मंदसी में बना के, वो कभी नहीं बताती। मैंने कहा इस वक्त इनकी बात इन्हीं पे आजमाओ। मैं कहा आंटी मैं बना के भेज दूँ, क्योंकि मैं झूठ बोल चुकी थी कि सब मैंने बनाया। लेकिन कीमा इतना पसंद आया सबको, वो इतना पूरा नहीं बचा भी, देखे वो मेरा सही। ये आइंदा आपके घर है या मेरे घर भिजवा रही है? गरीब मेरा घर आपसे बहुत। भाई हर चीज उनसे मैं फिश पे मसाला लगवा के लेके जाती थी, बड़ा अरसा में लेके जाती रही। फिर मेरे मियाँ ने कहा देखो ये देखिए, ये तो देखे ना मेरी आपकी मेरी बहनें। हाँ ये अभी की रिसेंटली पिक्चर्स है। तो वो अच्छा ये जुनेबिया की मदर थी ना? जुनेबिया की, जुनेबिया मेरे साथ मेरे दूध पर के साथ उनकी मदर है। तो कितनी ब्यूटीफुल जीन्स, बंदा कहता है ना, माशाल्लाह। ये आपके बड़े बेटे हैं आपकी? जी बहू बेटा। अच्छा ये भी पिक्चर है, अच्छी वाली पुरानी पिक्चर? हाँ पुरानी पिक्चर है। और ये कब की पिक्चर है? ये भी मेरे ख्याल में कोई 2 साल पहले की है, 2-3 साल। ये अरसलान की शादी की है। हाँ कितनी अच्छी। और ये माशाल्लाह मैं, और ये जुनेबिया की अम्मी फरा मेरी बहन। तो माशाल्लाह ब्यूटीफुल पिक्चर्स, ब्यूटीफुल पिक्चर्स। अच्छा वैसे मुझे एक बात आप लोग बताएं, आप लोग को क्या याद पड़ता है जब वैसे बचपन में आपके घर कोई एकदम से बिन बनाया, जब मेहमान आता था तो अम्मी उस वक्त फौरन क्या तिगड़म करती थी? और अब साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि आपके अपने घर कोई ऐसा बिन बुलाया मेहमान आ जाए जैसे, तो आप लोग खुद क्या तिगड़म करते हैं? लेकिन मुझे पहले ब्रेक लेनी है प्लीज। ये ब्रेक के बाद होगी सारी तिगड़म काम कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
بعد हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और आज बात हो रही है कुछ दावतों के हवाले से। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सब लोगों से एक सवाल किया था कि भाई आप लोग के अपने बचपन में क्या यादें हैं कि कोई एकदम से मेहमान आ जाता था तो अम्मी क्या तिगड़म करती थी, और आप लोग अब क्या तिगड़म करते हैं कोई अगर कोई ऐसा मेहमान आ जाए, आप लोग इतने लकी हैं कि लोग बिन बुलाए अगर आ जाए। हमारे यहाँ आते हैं बिन बुलाए मेहमान, ऐसा नहीं आते। मेरा ससुराल बड़ा है, मेरा मैका बड़ा है, तो और मेरा ही घर वाहिद है जो खुला है, मतलब जिसका जी चाहता है वो बेल बजाकर आ जाता है, तो मुझे अच्छा लगता है। अम्मी जो करती थी वही हमने सीखा है। हमारे यहाँ कोफ्ते बने रखे होते थे, मटर छिले हुए रखे होते थे, ऐसे वो कबाब बने हुए रखे होते थे, तो हम तो ये हैरान होते थे जैसे ही कोई आया ये इतना दस्तरखान सज कैसे गया। मतलब ये अभी की भी बात है, और ये जब हम पिंडी में रहते थे, जब मैं शोबिज में नहीं थी, तो हम सारे ये हैरान थे ये क्या है, ये कहाँ से निकल कर आई थी। तो वो मेरा ख्याल है कुछ नहीं तो सूजी का हलवा फटाफट ऐसे करके कहती थी सवैयां बन रही है, फौरन बन जाती। तो जर्दे वाली सवैयां वो बन गई। तो जो एक ट्रे वो बनती थी ना, जो चाय की टेबल भी, तो उसमें कुछ 6-7 आइटम और घर के पकौड़े बन गए, बिल्कुल कबाब बन गए, पकौड़े खाने पे है तो वो कोफ्ते बन गए, मटर पुलाव बन गया। तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा रेडी हो जाता था, चिकन कढ़ाई जल्दी से। तो अम्मी को ये नहीं मसला होता था कि अम्मी कहते थे हाँ आओ आ जाओ जल्दी। तो वो बहुत सारी चीजें वही अब हमारे घर में भी है कि आप आएंगे मेरे घर में तो आपको कोफ्ते भी बने हुए मिलेंगे, फ्रीज हुए हुए, इसी तरह कबाब फ्रीज हुए हुए। मुझे टेंशन नहीं होती है कि मैं हाफ दिन काफी सारी चीजें करके रखती हूँ, अगर कुक नहीं भी हो सकता तो अगर मुझे खड़ा होना है तो मैं खुद भी खड़े होकर उसी वक्त सस्ता टक कर बना देती हूँ। सादी जी आपकी तरफ क्या होता था? अच्छा, हमारे यहाँ मम्मी को मैं देखा करती थी ना, मम्मी जब कोई मेहमान आता था तो फिर मम्मी को होता था कि अब मैं खुद जाऊंगी किचन में, वरना मेरी भाभी होती थी। पहले तो भाभियां भी क्या प्यारी भाभियां होती थी, हम लोग जाते थे, हम बहनें बैठ ही जाती थी और भाभी शाम में 5 बजे की चाय की ट्रे लेकर आ रही हैं, खाना तैयार है, खाना लग गया है। हम मम्मी के साथ बैठे बातें ही करते रहते। अब मैं कहती हूँ भाभी से, कहती हूँ भाभी कितनी जालिम सी नंदे लगती होंगी हम लोग, हम बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं मम्मी के साथ, आप कभी खाना रख रही हैं कभी चाय। तो वो कहती थी नहीं मैं घर जाती हूँ तो मैं भी ऐसे ही बैठती हूँ। इतने पॉजिटिव लोग थे पहले के कि मैं घर जाती हूँ मैं भी है, आप अपनी अम्मी से मिलने आई हैं तो अम्मी के पास बैठी हैं, हम बाद में बातें करेंगे। तो मम्मी के जब भाई आया करते थे तो वो अक्सर रात में लेट नाइट ही आते थे, तो मम्मी जाती थी किचन में। और हमेशा सर्दियों का मुझे स्पेशली याद है, मम्मी ने चिकन का निकालना पैकेट, उसे कुकर में रखना और उसमें थोड़ा एक हल्का सा प्याज, थोड़ा सा सिरका, नमक और लाल मिर्च डाल के प्रेशर दे देना और ऑयल डाल के प्रेशर खोल के उसको ज़रा सा और हिलाया और वो इतनी अच्छी रोस्ट डिश तैयार हो जाती थी। रोस्ट 5 मिनट वाली। फिर गाजर का हलवा हमेशा बनाकर रखती थी, वो निकाला और अंडे बॉईल करती थी। अंडों का कितना फैशन होता था पहले, देसी अंडे, क्योंकि वहाँ तो ठंड भी होती है, ठंड और वो जो ट्रॉली लगती थी ना, वो उसकी खुशबू मुझे आज भी फील होती है। तो वो मम्मी का एक होता था, हम जाते थे किचन में, कहती थी नहीं तुम लोग जाओ। और फिर वो उनका वाइट डिनर सेट या टी सेट गोल्डन लाइंस वाला उनका फेवरेट था, बस वो निकलता था। चम्मच, और मेहमानों के लिए उन्होंने चीजें अलग रखी होती थी। और वो अब मेरे घर क्या, मुझे भी खाने बनाने की शुरू से आदत थी। तो मेरे मामू मुमानी जो है ना, मेरी मुमानी अक्सर फोन करती थी, बस हम निकल रहे हैं, सबा आ रहे हैं, और मैं कभी न्यूज पढ़कर आ रही हूँ या मैं वापस जा रही हूँ या मैं पहुंची हूँ और फोन आ गया, आते ही बैग फेंका, किचन में गई और फिर मैं फ्रिज देखती थी क्या क्या पड़ा हुआ है। बाजों का 2-2, 3-3 दिन के खाने होते थे, निकालती थी उनको, प्याज गरम किया, फ्रेश किया, उन सबको मिक्स किया, उसमें चावल डाले। ये मेरी फुप्पो करती थी, इससे अच्छा बनता था वो कि मैं आपको बता नहीं सकती। और चिकन निकाला और चिकन तो कढ़ाई फौरन तैयार। तो आंटी कहती थी अभी तो मैंने कॉल की है, आंटी उसी वक्त मैं एंटर हुई। नहीं ये नहीं था मकसद, हमने खाना नहीं खाना। मैं कहा नहीं अब तो आप खाना खा कर। और तब मेरा डाइनिंग टेबल जो था ना वो 6 का था। तो मुझे हमेशा तकलीफ होती थी, यार ये बहुत छोटा है, जो भी आता है ना कुछ को उधर बैठना पड़ता है। जब मैंने ये घर बनाया, मैंने घर में सबसे पहले
8 चेयर्स वाला डाइनिंग टेबल रखा कि मुझे सबसे पहले डाइनिंग रूम अपना परफेक्ट चाहिए, बड़ा चाहिए। तो वो ताकि मेरी मेहमान नवाजी कहते हैं ना, आप अपने दस्तरखान को जितना खुला करेंगे, वसी करेंगे, अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा करेगा। तो इस बात पर तो मेरा ईमान है। बिल्कुल। आपके यहाँ क्या होता था रबाब? इसी तरीके से जो सादिया ने बताया कि वो आदत और के मटर छिले हुए रखे हुए हैं, सारी चीजें पहले कबाब ये वो सब पहले होता था। दोपहर में मटर छिल रहे हैं घर में कि आप है ना बैठे में 5-5 किलो 10-10 किलो मटर आ रहे हैं, वो छील के रख रहे हैं। हम भी बैठे हुए मटर छील रहे हैं, मतलब पहले तो 10-10 किलो मटर आपको फ्रीज कर देते। अभी भी मैं भी पालक काट के पालक धो के और मैं रखती हूँ, मैं भी उसी तरीके से रखती हूँ। बट अब मैं सिर्फ मिस ये करती हूँ क्योंकि अब मैं लाहौर आ गई हूँ तो मेरे मेहमान नवाजी कम होती है क्योंकि मेरा लाहौर में कोई है ही नहीं और सारे मैं कराची में, अब मैं मेहमान बन के कराची आती हूँ क्योंकि मेरी दावतें होती हैं। तो अब 3 साल हो गए इस चीज को और अब मैं कहती हूँ कि घर बनाने भी मसरूफ थी तो अब मैं कहती हूँ भाई घर भी बन गया सब, अब आओ मेरे घर रहो और अब है ना आओ। अच्छा, मैं जब बाहर के मुल्कों के देखती हूँ ना, जैसे मेरी कजन्स वगैरह सब के इतने अच्छे अच्छे घर हैं, इतना सा, तो मैं कहती हूँ यार क्या फायदा, इसमें कोई आता है कोई आता ही नहीं है, इस घर का क्या फायदा, इसलिए लोग बुलाते थे मोहब्बत से, आओ कोई तो आए। ऐसे ही है, हमने इतनी मेहनत से घर बनाया है। बिल्कुल, तो ये मैं चीजें बड़ी मिस करती हूँ। अब 3 साल हो गए मुझे और मैं अकेली होती हूँ और मैं कहती हूँ कि यार मतलब वो कराची जब मैं आती हूँ तो वो एक रौनक अलग होती है। कराची में आपके जब आते थे ऐसे कोई दोस्त वारा आ जाते थे, जैसे बोलते हैं ना रात में जो दोस्त आ गए, हमारा तो चाय का कल्चर भी है, चाय का पियेंगे, खाना की बाहर खाए, चाय तुम्हारी तरफ पियेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरे घर में रेडी होती थी और जवेरिया, साइमा कुरैशी, ये लोग सारे लोग मेरे जो मीडिया से जो हैं करीब वो मुझे जानते हैं और ये लोग मेरे घर आए हुए हैं और वो हैरान होते थे जब पहली दफा आए तो वो हैरान हुए कि तुमने ये सब कुछ बनाया है, ये तुमने सारा खाना बनाया है। तो खाना अभी तक मेरे पास कुक नहीं है, मैं खुद खाना बनाती हूँ। वाह। और जब भी दावत होती है मैं खुद ही खाना बनाती हूँ और लोग हैरान होते हैं। क्या बनाती है सिर्फ आप ये बताएं? मैं बिरयानी बहुत अच्छी, वो फेवरेट लोग बोलते हैं कि बिरयानी और कराची की बिरयानी तो आपको तो पता है कितनी मशहूर है, तो लोग स्पेशली कहते हैं कि मैं मटन स्टू बहुत अच्छा बनाती हूँ। मैं पाकिस्तानी सारी डिशेस बहुत अच्छी बनाती हूँ। और ये आपने अपनी अम्मा से सीखा था? नहीं, मैंने अपनी सास से सीखा था। ओह जबरदस्त। अम्मा से नहीं, मैंने अपनी सास से, कुछ मेरी नानी से डिशेस मैंने सीखी थी, कुछ मतलब सीखी क्या थी, मतलब किचन में कभी नहीं गई थी, गई मैं किचन में शादी के बाद ही हूँ, बट वो एक शौक था देख देख के तो वो सीख जाता है और वो बस पता नहीं अल्लाह ताला ने जायका दिया हुआ हाथ में। ये सारी बात ये है कि जायके वाली बात है। अच्छा, आप तो ना घर में कुछ ना भी पड़ा हो तो तरबूज पड़ा तो तरबूज का भी सालन बना लेंगे, टैलेंटेड है हमारी। आपने वैसे क्या तरबूज के छिलके की? अच्छा, ये वाली बात बिल्कुल हमारी अम्मा बनाती थी। तरबूज के छिलके की बहुत अच्छी तरकारी मैं निदा के शो पे बना के बाजी ने मुझे बना के दी। निदा को भी यकीन है, अगली बहुत पुरानी रेसिपी है, कोई नई नहीं है। तरबूज के छिलके मैंने पहली तरबूज में गोश्त खा रही हूँ, इतने मजे किए। आप अरवी का जो छिलका होता है उसको बॉईल करके उससे शामी कबाब बड़े अच्छे बनते हैं। ना करें कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, मैं भी पहली दफा सुन रही हूँ इतनी चिकनाई। मेरे घर में जो होता था ना, जब मेहमान आते थे, जब मैं छोटी थी और मेरी अम्मी सारा किचन संभालती थी, अच्छा हमारे घर में शुरू से सारे काम के लिए तो हम किसी को रख लेते, लेकिन खाना बनाने के लिए कोई भी नहीं। वो पंजाब के अक्सर मर्द जो है ना वो कहते हैं खाना घर की औरत, रोटी भी घर की औरत के हाथ की। तो वो बचपन से लेके आज तक खाना बनाने के लिए नहीं है, हेल्प कर देता है, खाना बनाने के लिए कोई नहीं है, चॉपिंग कटिंग कर दी। अच्छा, मेरे घर में जैसे मैंने देखा कि हमने आज बनाया हुआ है मटर आलू बनाया हुआ है, सही, वो राइस बनाए हुए हैं, मटर आलू बनाए हुए। मेहमान आ गए अचानक से, वो आते थे बच्चों के साथ आते थे, जैसे फैमिली के मेरी अम्मी की कजन्स आ गई या मेरी खालाएं आ गई, और बगैर बताए, मोबाइल तो होता नहीं था कि हम आ रहे हैं, वो एक टेलीफोन होता था, किसी घर पे था किसी घर पे नहीं था, तो वो आ जाए तो मेरी अम्मी क्या करती थी, फटाफट हमें कहती थी कि अंडे जो पड़े हुए ना उसको बॉईल करने के लिए रख दो, क्योंकि मटर आलू बनाया हुआ है, थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए उसके अंदर अंडे बॉईल करके इसके अंदर डाल देंगे। हाँ सही है। अब फिर वो कहा कि चलो वो अच्छा, मैं वो अब तक बनाती हूँ, दाल रखी हुई है, कल की दाल बनाई थी, दाल चावल, तो दाल है तो फिर उसको क्या करा, दाल फ्राई बना ली, अलग से मसाला भूना, अच्छा सा मसाला भून के फिर वो कल की दाल डाल दी,
फिर धनिया पुदीना और मिर्ची इसके ऊपर डाल के फ्रेश करके फिर वो चपातियां जल्दी जल्दी घर में बनाई, उसके साथ रख दिया। और दही तो लाजमी हिस्सा होता था, क्योंकि जल्दी से दही लेकर आ जाओ, क्योंकि एक जो टेबल है ना आपको सज जाता था कि दही है, फिर सैलेड है, फिर रोटियां हैं, तो इस तरह से है। और डिफरेंट डिफरेंट चटनियां भी, वो भी बड़ा मैटर करती हैं। घरों में अचार तो होते ही थे, हर घर में अचार डलता था। आजकल हम बाजार से अचार मंगवाते हैं, कहते हैं कि नहीं अचार बनाएंगे तो स्मेल आती है घर में, क्योंकि वो जब सब्जियां जब ड्राई होती है तो उसकी स्मेल बहुत दिनों तक भाई वो डिस्कशन रहती थी घर में, अच्छा हमने आमले का डाला, उसमें ये आ गया, बताओ क्या करूं। खाने की टेबल पर ये डिस्कशन हो रही होती थी। और आजकल हम जो ना दूसरी ही बातें कर रहे होते हैं कि ये वाला नहीं, इंटरनेट सही नहीं चल रहा तो फलाना हो रहा, हमारी बातें नहीं करना चाहे ना जो इंसान वो सब कुछ कर सकता है। सिर्फ ये बहाने हैं कि यूं नहीं तो यूं नहीं। मतलब मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं खाना पकाऊंगी, कभी भी नहीं सोचा था कभी कि मैं खाने बनाऊंगी बड़ी बड़ी दावतों के और मैं 50-50 लोगों के पतीले चढ़ाऊंगी, सोचा भी नहीं था कभी मैंने। तो मैंने चाहत थी और मैं चाहती थी कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें, तो मैंने बनाया ना। और मधिया आजकल क्या हो गया कि बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, तो मटन भी होना चाहिए, चिकन, लेकिन पहले ये वाला नहीं था। मेहमान भी बहुत अच्छे, 2-3 चीजें भी होती थी पहले, तो चिकन होता था, मिलने दावत होती। हाँ कितनी अच्छी बात है। अब आपको जज करने आते हैं, पहले लोग अब आते जज करने के लिए, किस तरह उनकी छापेमारी। आजकल दावतों में 2 चीजें होती हैं, खोल खोल के डिशेस, वीडियो बननी है, ये क्या है, ये क्या है, और सोशल मीडिया ने भी और तस्वीरें, बिल्कुल पिक्चर्स बननी है, ये 2 काम होते हैं आजकल। या तो ना इन पिक्चर्स की प्रेशर की वजह से ना फिर हम बहुत ज्यादा चीजें भी बनाने की तरफ चले जाते हैं, हम अपना बजट से भी आउट हो जाते हैं। रेस्टोरेंट्स भी नहीं थे इतने, कहाँ होते थे, जितने घरों के खाने ही होते थे, घरों में ही दावतें होती थी। कब हम रेस्टोरेंट में, मुझे तो नहीं याद पड़ता, इक्का दुक्का कहीं हम चले जाते थे, हमें तो याद नहीं पड़ता कि हमारे बचपन में हम कोई इतने रेस्टोरेंट्स में गए हो। हर घर में खाला क्या दावत है, फलां क्या दावत है, फलां क्या दावत है, सिर्फ घर में दावतें होती थी। ईद की छोटा बड़ा दिन होता था, सारी चीजें घर में होती थी। अब तो आपने वहाँ गए थे खाना खाने के लिए, वहाँ फलाने रेस्टोरेंट में खाना खाया। खास बात ये थी ये वैसे ये जो फुटेज हम इस वक्त चला रहे हैं, जनाब रुबाब की जो कुकिंग है उसके हम चला रहे हैं। यार मेरी कुकिंग की आपने कोई अभी हम चलाएंगे, अभी पूरा शो पड़ा, ये प्रॉन मसाला, ये प्रॉन मसाला भी बन रहा है क्या। वो मैं जब प्रॉन मसाला में ये बनाती तब, और ये फ्राई दाल, ये बिल्कुल ये दाल होगी। और ये ना मैं उसी वक्त जब मेहमान आते हैं ना, उसी वक्त में फटाफट उसको फौरी बना के और सर्व करती हूँ, क्योंकि वो अकड़ जाते हैं ना वरना प्रॉन्स का। तो वो मैं किचन में होती हूँ, मेहमान लगा हुआ होता है, और वो मैं देखिए प्रॉन की पूरी एक साइंस है कि आपने देखना है कि ये ज्यादा अकड़ ना जाए, वो तो 2-3 मिनट से ज्यादा कुक नहीं करता। वो मैं पहले से करके नहीं रखती दावत में, वो मैं तब करती हूँ जब मेहमान टेबल पे होते हैं और मैं बस किचन में। आप लोग क्या जब कोई दावत आप लोगों ने बड़ी प्लान करते हैं तो उसकी तैयारी कितने दिनों पहले शुरू करते हैं उसे? मेरे यहाँ जैसे कुछ चीजें तो मेरा फिक्स है। 23 रमजान मेरा पूरा ससुराल आता है, कोई 80 के करीब लोग होते हैं, तो वो मुझे पता होता है। तो वो 5-6 दिन पहले से जैसे समोसे, पेटी, ये सब कुछ बना के रखना शुरू कर दी। रमजान का टाइम, रमजान से पहले भी शुरू कर दी। हाँ कुछ चीजें तो ये सब चीजें तो हमारी रखना शुरू हो जाती हैं। चाट चने उबाल के रख दिए, चीजें कर दी। मीठा, डबल का मीठा मैं बनाती हूँ, तो उसकी कुछ 2 डिशेस जो है वो बना के मैंने 1 दिन पहले ही उसको फ्रिज में, ताकि वो अच्छा ठंडा हो जाए। इसी तरह अभी रजब के कुंडे आ रहे हैं, तो उसकी तैयारी भी 2 दिन पहले से, खीर पहले से बना। हाँ जी हाँ। तो बिल्कुल आपको पिछली दफा भी बुलाया था, मैं माजरत की थी, आपने यहाँ से की थी, मैं लाहौर में थी। तो वो होता है कि उसकी तैयारियां शुरू होती है। मेरे यहाँ तो दिन गिने में कि दिसंबर आएगा तो बारबेक्यू होगा सादा के घर छत पे। अच्छा, फिर 1 जनवरी पाया पार्टी होगी, वो मेरे ददिहाल की होगी, क्योंकि ददिहाल मेरा ये वाले खाने बहुत शौक से खाता है, और उसमें मेरे 2 और 3 जेठ जरूर आते क्योंकि वो भी खाते, तो वो सब मिक्स हो जाती है खानदान वाला। तो वो एक होता है। फिर उसके बाद हमारी 23 जो है वो मेरे ससुराल की है। फिर इन बिटवीन बीच में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। लेकिन इनकी तैयारियां जो है ना, ये क्योंकि अब फिक्स नौकरों को भी हो गई है, मुझे भी हो गई है, तो वो हमारी तैयारी पहले से ही रहती है कि यार अब ये तो अब क्या हमने इसका मेन्यू रखना है, क्या करना है। जैसे रजब के कुंडे में भी जो हमारा वो होता है, सब घर का खाना होता है, हलीम तक घर में बन रहा होता है, तो वो पहले से वो हलीम मेन्यू में कुक बनाता है। तो वो सारी चीजें मैं उसकी टिकिया और खीर वो मेरे हाथ की होती है, क्योंकि मैं वो
امی کہتی تھی نظر کی چیز کسی اور کا ہاتھ نہیں لگاتے, تو وہ پاک صاف ہو کے آپ نے خود ہی بنانی ہوتی ہے. اور اس سے پہلے تیاری بڑی تھی نا کہ پورا آپ نے پہلے فریج پورا فریج کے علاوہ آپ نے پورا کچن صاف کرنا ہے, کچن واش ہو گئی, ایک طرح سے کچن کو بھی غسل دیا جاتا ہے. پھر آپ تو میں ابھی لاہور گئی ہوں اور صبا جی کے ساتھ جا کے میں نے کوئی شاپنگ کری ہے, گھر کے برتن میں نے, کیونکہ مجھے ہر رجب کے کنڈے میں ہوتا ہے میرے پاس کوئی نئے برتن, تو میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا یہ جو آپ کی ڈشز سجی ہوئی ہیں کدھر, کہتی ہیں آج جاؤ گھر چاہیے. تو یہ مجھے لے کے گئی وہاں کاکا بابا, اور انہوں نے کیا مجھے, میں نے وہاں سے ڈشز خریدی. ابھی یہ شادی پر میری کزنز وغیرہ آئی ہوئی تھی امریکہ سے, تو انہوں نے کہا صبا جی وہ جو آپ کی ڈشز ہیں نا اور ڈائننگ ٹیبل کی چیزیں مجھے بھی لیں ایک نا میرا خیال انہوں نے ریل کی طرح بنا دی مجھے نا وہ. یہ ایک ہمارا بہت خوبصورت دسترخوان بھی تھا اور ڈنر بھی تھا, تو وہ بڑا ہی زبردست ہوا تھا. یہ تو وہ بھی ابھی کل مجھے فون آیا تھا کہ ہم اس شاپ پر ہیں, تو اب انہیں کہیں ہمیں کنسیشن دے. تو وہ امریکہ لے کر گئی ہے وہ ڈشز وغیرہ, ہاں ساری. بلکہ نا وہاں پہ بھی اگر آپ ڈھونڈیں آپ کو بہت انڈین شاپ سے بہت اچھی مل جاتی ہے چیزیں امریکہ میں. اچھا میں کچھ گلاس لیتی ہوں ان کے پاس, پیتل والے, یہ دیکھیں نا حسین, ان ڈشز نے مجھے پاگل کر کے لاہور بھیجا. یہ سمجھیے آپ نے اتنی اسپیڈ وہ میرے خیال سے وہ اس پہ تو نہیں, فارورڈ پہ تو نہیں وہ ہو گئی بڑی تیز. نہیں بنانے والی ویڈیو آئی, ہاں ویڈیو آئی ایسے, واپس ویڈیو آئی ایسی. اچھا پھر مجھے ہر ڈنر پہ نا ایک ڈنر سیٹ بھی نیا چاہیے ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو میں بتاتی ہوں کہ میں نے اپنے گھر میں جو سٹیئرز کے نیچے کی جگہ ہے نا, لوگ اس کو سب سے فالتو جگہ سمجھتے ہیں. میرا وہ اتنا بڑا سٹور ہے کہ ادھر میں نے ایک بڑی سی الماری چھت تک کی نا, 4 اتنے بڑے بڑے پلے 4 پوری بنائی ہے جس میں سارے میرے یہ برتن. ہاں سارے پلیز ڈبوں پہ لکھ لیا کرے. ہاں میرا جو بھی آپ جو چیز اس میں رکھ رہے ہیں لکھ لیں تاکہ نا کبھی کسی کو فون پہ بتا دو ابھی ہو تو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ یہاں رکھا ہوا ہے. میں تو سم ٹائم جرمنی میں ہوتی ہوں تو یہاں تیاری کراتی, کوئی مجھ سے کہہ دیتا باجی وہ تمہارے یہاں سے وہ لینا, میں کہا ہاں جائیں میں اسے بتا دوں گی. یہ دیکھیں نا یہ کیا مزے کی, یہ تو بڑا پیارا ہے. ابھی ہم یہی تو دیکھ رہے تھے. میں جب شفٹنگ ہو رہی تھی لاہور آ رہی تھی نا, تو وہ سارے کارٹن ہے نا صرف کراکری کے, تو وہ نا میرا میاں کہنے لگا کہ کتنے یہ کارٹن, کس چیز کے کارٹن ہیں. میں نے یہ کراکری کے وہ پیکرز آئے ہوئے تھے, وہ پیک کر رہے تھے. کہہ رہے تمہارا دماغ ٹھیک ہے, تم کہہ لیں گے یہ تم بیچو اس کو, گاڑی آ جائے گی. مجھے کہتا ہے یہ ساری کراکری بیچو, تمہاری ایک نیو برانڈ گاڑی آ سکتی ہے. سوچے کراکری آسانی سے نماتی ہوتی, اتنی محنت سے کبھی کہیں سے کلیکشن آپ لے کر آتے ہیں, کہیں کلیکشن. مجھے گلاس جمع کرنے کا بہت شوق ہے, مجھے کرسٹل کے ہر طرح کے گلاس جمع کرنے کا شوق ہے. کہہ لیں گا تم اتنے کارٹن صرف تمہارے کراکری کے. یہ بتائیں ان دعوتوں کے درمیان میں اگر کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو دل الحمدللہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب سلمان کی شادی تھی تو مہندی والے دن اتنے لوگوں کو بلایا نہیں تھا, لیکن کوئی 150 لوگوں کو بلایا تھا, کوئی 300 آ گئے تھے. اور اتنا مجھے ڈپریشن ہو رہا تھا, ہم ڈانس کر رہے ہوتے تھے تو سعدیہ کہتی تھی اماں ذرا وہ گیٹ کی طرف دیکھے. میں تو ایک جھنڈ کا جھنڈ آ رہا ہوتا تھا. میں کہتی تھی میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتی, میں جا کے ڈانس کرنا شروع کر دیتی تھی کہ میں کیا کر سکتی ہوں. اچھا پھر وہ جو ہمارے ان سے میں نے کہا کیٹرنگ والوں نے کہا باجی آپ کھانے کی بالکل فکر نہ کریں, لیکن آپ برتن نہیں آ سکتے. میں نے کہا اس کو تو آپ چھوڑ دیں. میں نے اپنے کوک سے کہا, میں نے کہا آپ سوچیں کتنے مہنگے ڈنر سیٹ ہوں گے, اس نے سب نکال اور سب یوز ہوئے. اور وہ جو مہمان بھی تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ مہندی پر جو گھر سے باہر کا ایونٹ, جو گھر سے باہر کا تھا, میں نے گھر کے باہر ہی کیا, بہت بڑا. لیکن اس وقت عزت زیادہ عزیز تھی. میں نے کہا آپ یقین کریں جب میں دوسرے دن ہم صبح اٹھے ہیں اور میں نے اس سے, مجھے رات نیند نہیں آئی کہ اب تو کچھ کنارہ ونارہ, وہ ایک بھی کنارہ تو بیکار ہو گیا نا پورا ڈنر سیٹ. تو میں کہتی تھی یار یہ تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ہوگا, کتنا کچھ گم نقصان ہوا ہوگا. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا خلیل وہ ڈنر سیٹ تم نے سارے نکال لیے؟ جی باجی میں دھو کے سب رکھ دیے. میں نے کہا کیا مطلب, صاف واف کر کے کچھ ٹوٹا؟ کہتا ہے نہ ٹوٹا ہے نہ کوئی چیز کم ہوئی ہے, کچھ نہیں. اور وہ آج تک میں یوز کر رہی ہوں اور کچھ نہیں ہوا تھا. یعنی یہ بہت بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. 100 لوگوں کے لیے گھر سے وہ پلیٹیں نکلی. اور میری جو شادی کا ڈنر سیٹ ہے
उस वक्त 5,000 का लिया था मेरा और मेरी बहन का, मेरे चचा ने लेकर दिया था, मुझे बड़ा बड़ा खूबसूरत कितना खूबसूरत ओवर, कितना महंगा था उस दौर में। और उस वक्त कहाँ से लिया था? एज क्रीम बख्श से, लाहौर लिबर्टी से। वो मेरा आज तक पूरा था। मेरी बहू अब ऊपर किचन सेट कर रही थी, मैंने कहा ये पकड़ो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। फुल 8 लोगों का पूरा डिनर सेट। समझ ही तो ये जो जहेज में मिले हुए जो होते हैं हमारे बर्तन होते हैं, जो डिनर सेट होते हैं, तो मुझे याद है मेरी अम्मी को ऐसा लगता था कि मेरे बाप की निशानी, मैंने कहा अम्मी अब नाना मुझे और कोई निशानी नहीं आपको दी। वो इतना प्यार से यूज करती है मेरी अम्मी के लिए, वो क्रॉकरी पर। मैं कहती अम्मी ऐसे हम इसको ऐसे ही देखेंगे, इसको निकालने बारिश को अच्छा, जब मैंने पूरा अपनी बहू को दिया तो उसने कहा अम्मा ये, मैंने कहा मेरी शादी का और ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, ये देख लो। मैं कहती है इसको तो मैं इस्तेमाल कैसे करूंगी? मैं कहा भाई करो। हम तो कोई नई चीज लाते हैं ना तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मेहमानों को बाद में देना, पहले मुझे दो, क्योंकि हम भी बड़े एंजॉय करें ना। मुझे तो जो घर की हम रोजाना की जो डाइनिंग टेबल सजती है ना, वो भी डिफरेंट होनी चाहिए, वो भी डिफरेंट होनी चाहिए। हम बहुत स्पेशल हैं भाई। मगर बात लोग करते हैं कि घर के खाने घर भी चला लेते हैं और जब मेहमान आते हैं तभी निकालते हैं। मैं तो 3 लोगों में भी अब उसको करती हूँ कि मैं भाई क्यों ना डिफरेंट, आता ही नहीं साथ में 3 लोगों में एंजॉय करो भाई, निकालो। गेस्ट लिस्ट कौन बनाता है और ये मेन्यू की लिस्ट कौन बनाता है घर में जब कोई दावत हो? तो वैसे मैं आप और गेस्ट लिस्ट भी आप बनाती हैं? हाँ, बस मियाँ से मशवरा कर लेती हूँ कि किस किस को बुलाना है, क्या करना है, तो वो हम लिख साथ ही बैठ के लिख रहे होते हैं। हाँ, हमारे घर में मशवरे से होता है क्योंकि हर किसी का अलग अलग गेस्ट होते हैं ना, तो फिर सबको पूछ के कि बस किसको किसको बुलाना है, मेन्यू कौन डिसाइड करता है? मेन्यू मैं भी करती हूँ, पूछ भी लेती हूँ और वो कहते हैं कि चले ठीक है, ओके है। लेकिन ऐसा होता है कि थोड़ा सा हो जाता है कि नहीं ये नहीं, फिर लास्ट में मेरा ही डिसीजन होता है। साबी आप, क्योंकि आप आजकल तो ये भी होगा ना, आप पूछे थे अच्छा भी आपका क्या खाने का मूड है, फिर हम आपको वैसा बना के मेन्यू तो मैं एक काम करती हूँ, अपनी नंदों को ना, एक ग्रुप है हमारा, तो उसमें मैसेज डालती हूँ यार मुझे थोड़ा आइडिया दे, इस दफा मेन्यू क्या रखे, तो वो आ जाता है सबके ना कि ये भी रख लो, ये भी रख लो, फिर मैं उसमें से ना चुन लेती हूँ ये वाली चीज ठीक है, ओके फाइन। बट मेरा एक हमेशा से हर दावत को लेके कंसर्न होता है, क्योंकि जब हम बच्चे होते थे, जब हम जाते थे ना, तो बच्चों के लिए कोई खाना नहीं होता था। सही बात है। तो मेरे यहाँ हर इवेंट पे आपको बच्चों के 2 मील जरूर मिलेंगे, वो चाहे स्पेगेटी हो, वो चाहे पास्ता हो, कुछ भी हो, वो कुछ भी हो जिसमें बच्चा एंजॉय करे। क्योंकि माँ बाप आके इतने परेशान होते हैं कि यार उन्होंने निहारियां बिरयानी नहीं खानी है बच्चों को, वो सादे राइस और आलू मिला के बेचारी दे रही है। चाइनीज में जरूर रखती हूँ बच्चों के लिए कुछ ना कुछ। तो मेरा मेन्यू हमेशा जो होता है ना, तो मेरे आने वाले सारे चाची क्या जा रहे हैं, वहाँ टेंशन नहीं है, वहाँ बच्चों का खाना जरूर, बच्चों के लिए वो मील जरूर। तो ये इवन रजब के कोने में भी मेरा ये होता है क्योंकि आप सब बच्चे फैमिली में, तो मैं बच्चों का मील अलग जरूर रखती हूँ कि भाई उनके लिए वो, क्योंकि सब बड़े भी पास्ता भी खाते हैं, स्पेगेटीज भी खाते हैं, तो वो एक ताकि बच्चे आए ना, वो ये ना कहे कि हमने खीर और टिकिया खा के क्या कितना खा लेंगे या हलीम कितना खा लेंगे, तो वो उनके साथ में उनको मिक्स करके रखती हूँ। अच्छा, मैं बच्चों के लिए मीठे में जेली बना लेती हूँ। हमारे साथ कोई क्योंकि बच्चे जेली बहुत शौक से खाते हैं, तो उनके लिए 2-3-4 कलर की बना लेती हूँ और वो बस उसी पे ही लगे रहते हैं बच्चे। हाँ, बच्चे में कितनी जेली खाई। समझिए आपके। अच्छा, मेरा ये होता था, मैं पहले जो भी डिनर विनर करती थी ना, मटन कीमा ये वो, तो मुझे मेरी बहन कहती बाजी अच्छा हम दूसरे लोगों के घरों की दावतों में जाते थे, सब्जियां भी होती थी, दालें भी होती थी, चने भी होते थे, तो बड़ा मजा आता था। सबा जी, मैं जरा आप ही की बात को कंटिन्यू करूंगी, मुझे ब्रेक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मजा आएगा। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। और क्योंकि आज का हमारा शो इतने मजे का है और एकदम से बचपन की बहुत सारी मेमोरीज आ जाती है। बचपन की दावतें तो हर घर में होती ही होती हैं, और अभी भी जो घरों में दावतें होती हैं उसके हवाले से भी चीज़ आ जाती है, अच्छा भी तब ये चीज़ होगी थी, तब ये चीज़ होगी थी। चीज़ अल्लाह का शुक्र है कम तो कभी नहीं पड़ी थी, लेकिन बाकी चीज़ें बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। हम बात कर रहे थे कि मेन्यू कौन डिसाइड करता है और जो मेहमानों की जो लिस्ट है वो कौन बनाता है। समझिए आपके घर में। अच्छा, ये मैं और फैसी दोनों मशवरे से करते हैं।
लेकिन होता वही है जो फाइनली मैं कहती हूँ, और मेहमानों की लिस्ट में भी, और जो मेन्यू होता है वो भी मैं फाइनल करती हूँ। उसके बाद मेरी बहन है सियालकोट में, वो मुझसे पूछेगी बाजी मेन्यू में क्या है, मैं कहती हूँ ये नहीं बाजी इसको अगर हम ऐसे कर ले, वो फिर फाइनल वही बता रहे थे कि मटन होता है, लोगों के दाल और पालक भी होता है। तो मैंने कहा हम लोग यही बनाते थे, लोगों के घरों में जाते हैं तो उनके सब चीजें होती सब चीजें, और वो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। ये पहली दावत थी अभी मेरी जिसमें मैंने वो पालक कोफ्ते और चने अंडे इस तरह की चीज, वरना मटन, वाइट मटन में ये मटन और कीमा, दम वाला कीमा, इस टाइप की चिकन कढ़ाई, तो वो सब अब मैंने सोचा नहीं सारी चीजें होनी चाहिए। मेरी मुमानी के घर दावत होती है तो वो टमाटर का कट क्या कहते हैं वो जरूर बनता है और सबको इतना पसंद आता है वो, और फिर सब्जी भी जरूर बनेगी। जैसे हमारी दावत में ना एक स्टू, पता नहीं जितने भी हिंदुस्तानी लोग हैं वो ये इस बात को पता नहीं स्टू जरूर। माश की दाल का खुशका, अच्छा मैं आपको माश की दाल का खुशका ये है कि अगर आपको वाकई बड़ी इज्जत मिली है ना उस दावत में तो माश की दाल का खुशका होगा। अच्छा मैं आपको बताऊं, जब हम पंजाबी जैसे आपने कहा ना कि मटन 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 हो, तो हमें ये लगता था कि जी अगले को गोश्त खिलाना है, तो क्योंकि हमारी हर सब्जी में गोश्त डलना ही डलना होता है। शादी के बाद हमारे घर में दावत थी तो उसमें फैसल के चचा और फैसल के भाई और फैसल के कजन हमारे घर आ रहे थे। तो अब क्योंकि फैसल ने कहा नहीं तुम तो नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, तो हम खाना हम किसी से बनवा रहे थे अपने, तो वो बड़ा अच्छे वो खाना बनाते। तो फैसल ने कहा अच्छा ये कर दीजिएगा, अब ये दम वाला कीमा चाहिए, ये चाहिए, और फिर उन्होंने कहा माश की दाल। तो मैं माश की दाल, हाँ दाल कौन खाएगा, सब ये हम दावत करें, हम दाल क्यों करें। तो मेरे मुझे ये एक डेलिकेसी होती है। अच्छा, और उसके बाद बाकी जब वो माश की दाल आई है और हर बंदे ने माश की दाल, तो फिर मेरी मियां ने सबको बताया कि ये जो है इस लाहौरन को ये लग रहा था कि दाल क्यों रख रही हो, दाल कौन रखता है, शाही वो डिश है ये। तो मैंने अभी शायद अभी वो मेरे टेबल पर दिखाई है बड़ी सी डिश चावलों का, वो हमने लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया कि हम मेरी बहन ने कहा कि नहीं बाजी बिरयानी या ऐसी कोई चीज़ ज़रूर बनाए। मैंने कहा अब ये तो नहीं बन सकता। अब मैंने उसे कहा, मैंने कहा वो प्याज जो बाजार से मिलता है ना फ्राई हुआ, मैंने कहा वो डालो और चावल बॉईल करो, और बॉईल करते वक्त उसमें खड़ा गरम मसाला डालो और उसमें एक पैकेट उसका डाल दो बिरयानी मसाले का, वो करके और वो चावलों को दम दे दो ऊपर थोड़ा सा जरदा रंग डाल के। उसने कहा बाजी ये कौन खाएगा, मैंने कहा तुम करो, जल्दी है टाइम नहीं है तुम करो। और उसने कहा कि वो चावल तो भीगेंगे भी नहीं, तो मैंने कहा इसीलिए तो मैं कह रही हूँ बॉईल करो, उसमें नहीं डालना बॉईल करो। अच्छा उसने वो सब कर लिया और मैंने वो पूरे चिकन को ना मसाले लगा के फ्रीज किया हुआ था। मैंने 3 पूरे चिकन निकाले, मैंने कैसे डीफ्रॉस्ट करो और इनको फ्राई करो, वो करके वो पूरी डिश में वो पहले चावल रखे और उसके ऊपर वो ना मैं कहती हूँ सबने कहा कि इसकी रेसिपी बता दो, इसकी रेसिपी बता दो, मंदी और वो सब देख रहे हैं। तो ये आप जल्दी जल्दी, और कितने लोगों के 50-60 लोगों का आप सोचिए, इतनी बड़ी डिश, और वो डिश भी इतनी जबरदस्त थी एक मेरे पास, लेकिन उसमें ना थोड़े से निशान आ गए थे। अच्छा। तो मैंने वो सिल्वर वाला फॉइल पेपर उसके ऊपर चढ़ाया और उसमें चावल, और वो डिश जो थी ना डाइनिंग टेबल की उस वक्त जान ये भी चीजें हम लोग करते हैं। तो मेरी बहन जो है ना वो माशाल्लाह कुकिंग सिखाती भी है, वो बहुत सना, वो ज्वेलरी भी डिजाइन, तो वो फाइनल मेन्यू जो है ना वो मेरा करवाती है कि ये नहीं ये निकाल दें, ये रख लें, इसको बाजी ऐसे कर लें। उसको पता होता है बाजी अब कहेंगे नहीं बस ये ठीक है, तो वो उस डर से वो कह रही होती है अच्छा नहीं ये अगर ऐसे कर ले। फोन बंद करके मैं सोचती हूँ हाँ ये सही कहती, चलो ऐसे। जब वो आती है कहती बाजी क्या, मैंने कहा जो कहा था। तो इस तरह से दावत हो, यानी कि आपकी वजीर होगी, वो वजीर है, वजीर है। तो फिर आपसे बोलते रहा। अच्छा, क्योंकि हम बात करें क्रॉकरी के हवाले से भी, तो हमारे से यहाँ सबिया, क्योंकि हम एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज्यादा जो इनकरेज करते हैं, सबिया बास साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी अपनी एक रेंज हमारे साथ लेके यहाँ पे मौजूद है, जिसमें देख रही कि जिसमें यूजुअली जो हाई टीज के लिए जैसे केक की जो है वो भी देख रही, स्टैंड मौजूद है, बहुत अच्छा। प्लेटर भी मैं डिफरेंट देख रही हूँ, क्रॉकरी के लिए मैं देख रही हूँ। कब से सबिया जी आप काम कर रही हैं? 2021 से ही हमने स्टार्ट किया था। अच्छा, कोविड के टाइम में, कोविड के आफ्टर कोविड ना, आई वाज थिंकिंग कि क्या किया जाए, कुछ क्रिएटिव किया जाए, तो देन आई स्टार्टेड दिस। और ये जो मैं देख रही हूँ इसमें पेंट हुआ हुआ है, क्या ये आपने खुद किया है? हैंड पेंट मेरी बेटी
किया है मेरी एल्डेस्ट डॉटर ने। उसके बाद अब हमने वर्कर्स वगैरह हायर की हुई हैं, लेकिन ये कि स्टार्ट मेरी जो आइडिया तो हम लोगों का था, सबका पूरे फैमिली का ही था, और फिर बेटी ने कहा कि नहीं इस पे कुछ हम पेंट करते हैं, तो ये हैंड पेंट है पूरा, और क्वालिटी जो है हमारी ये मैंगो विट हमने यूज की हुई है, तो क्वालिटी मतलब गारंटीड क्वालिटी। तो सबिया जी क्या कुछ आप लेकर आए ताकि मैं जल्दी से अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं, और फिर मुझे जो मेरे साथ यहाँ पे जो खवातीन है ना मेरी सेलिब्रिटीज, इनसे मैं पूछूंगी कि ये तो जरा अभी की चीज है ना सारे शश के, ये इन्होंने पहले क्या किया, उनके घर में क्या होता था? अच्छा ये तो जनाब ये हमारी राउंड शेफ प्लेटर है, हाँ, देन फिर इसमें आजकल चीज प्लेटर, ये रोम्बस शेफ प्लेटर है, मतलब आप जो भी ड्राई आइटम्स हैं व्हाटएवर फॉइल पेपर और सब कुछ रख के आप उसको करते हैं। ये हमारा प्राइस रेंज है इनकी, ये इनकी 3500 ईच ये। अच्छा हाँ, और ये हमारी टी कैडी है, ये हमारा मोस्ट हिट आइटम है, और ये हमारी टी कैडी है, कुछ एलिवेटेड है ना जी। ओह ये तो कॉफी के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, कॉफी के लिए ये शुगर पॉट, और ये सारी इस तरह से जो भी ठीक है, यहाँ पे टी बैग चले हुए हैं, यहाँ पे नैपकिन्स हैं, दिस इज नाइस। ये है ना, इसकी प्राइस हमने 5500 रखी है, और ये हमारी चारपाई, ये सर्विंग चारपाई, समोसे पकोड़े, ये हमारा मोस्ट आइटम है ड्यूरिंग रमजान, और ये हमारा ठेला, सर्विंग ठेला, ये हमारा केक प्लेटर, पेडिस्टल प्लेटर हमने इसको नाम दिया हुआ है, और ये डिटैचेबल है, तो इसको मतलब अलग भी कर सकते हैं, इजी मतलब चला जाएगा कहीं भी जी। और ये हमारी कटलरी कैडी है, इसमें हमने ये सब नैपकिन रखे हुए हैं, फिर उसको एज अ वेट ये हमने बनाया हुआ है। देन ये हमारी प्लेटर्स है, हमारी और भी प्लेटर्स हैं, अच्छा। तो ये हमारे लॉन्ग प्लेटर है, ये राउंड प्लेटर है, ये हमारी लूडो टेबल बच्चों के लिए, इसमें आप चाय पीते हुए लूडो भी खेल सकते हैं, बिल्कुल आप जैसे ना विंटर में तो भाई बहुत सब लोग आपस में रुकने आते हैं, सब होता है, तो ये आपकी बड़ा अच्छा बच्चों के लिए और खुद बड़ों के लिए भी बड़ा अच्छा। तो आपको बहुत फायदा भी हो रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ ये नहीं कि जी अवेयरनेस रात की, पहले होते डिनर्स होते थे, अब लंचेस भी हैं, अब हाई टी भी है, ब्रांचेस भी हैं, और ब्रेकफास्ट भी है घरों में, बच्चों की प्ले डेट पंजाब में तो बड़ा दिखेगा, जी आने वाली है, अब तो बाकी प्ले डेट आने वाली भी है। मुझे बताएं, आप लोग अपने घर में जब ऐसे कुछ तिगड़म और शशके करने होते हैं, मतलब ये तो अभी मैं आपसे बात करूं कि आज से 6-7 साल पहले इस तरह के बहुत चीजें शुरू हुई, उससे पहले नहीं था। मुझे मेरी तो एक दावत अभी की है जिसमें चीजें मैंने पता क्या किया था, ये जूते के डब्बे, आपके पास गिफ्ट रैप बड़े बड़े जो मजबूत उनके ऊपर मैंने फॉइल पेपर चढ़ाया, क्योंकि आपको ना डोंगों को या किसी चीज को ऊंचा नीचे रखने के लिए, तो ये चीज क्योंकि हर बंदा अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए कुछ तो हो ना कि वो क्या करे, उसकी क्रिएटिविटी कहीं तो ये सब चीजें मैंने, और सम टाइम होता है कि आपके पास जितनी भी हो, अगर बड़े डिनर्स हैं, आपने 3-4 जगह पे, क्योंकि मेरे यहाँ जिस तरह का ससुराल है बड़ा है, तो मैं 3 जगह खाना जो है वो टेबल लगाती हूँ, तो मुझे होता है कि वो बाहर वाला भी जरा ऐसा अच्छा लगे, अंदर वाला भी अच्छा लगे, मतलब शख्स की हर जगह की पूरी होनी चाहिए। आपके पास ये वाली चॉइस मैं तो बहुत करती हूँ कि मैं अपने जितने अच्छे वाले डब्बे बॉक्सेस आते हैं ना, जो मैं जर्मनी से शॉपिंग है तो मैं बॉक्सेस संभाल के रखी हूँ, इन्हें संभाल के रखूँ, इन पे फॉइल पेपर चढ़ा के। जर्मनी से सबसे ज्यादा क्या किन चीजों की शॉपिंग करती है जब आप अपनी क्रॉकरी के हवाले से करती हैं? तो वहां से तो मैं ना ये जितनी भी क्रॉकरी ये वाली मिलती है ना, स्पून वो बड़े ही मजे के, क्योंकि बाकी चीजें इतनी भारी कि वो लाए। हाँ, लेकिन हमारे तो लैंप तक वहां से हमें पागलपना था, लेकिन ये कि वो मुझे अच्छा लगता है। यहाँ आप जितनी भी ढूंढ लेना वो क्लास वो नहीं आती मुझे। मगर अब यहाँ पे काफी चीजें अब बहुत बेहतर हो गया कि यहाँ पे आपको मिल जाती है, ऑनलाइन कुछ आपको बाहर से मिल जाती है, वहाँ वारंटी है, वहाँ वारंटी है। वहाँ अगर आप किसी भी कटलरी सेट को जो एक्सपेंसिव वाला और वहाँ के ब्रांड का ले रहे हैं तो उसकी 2 से 3 साल 4 साल की वारंटी होती है कि उसमें स्टेन नहीं आएगा। तो यहाँ तो मुझे लगता है कि वो फिर जरा सही रहती है। या हमारी किस्मत है, अच्छी निकल गई तो निकल गई। अगर ढूंढो आपकी आए हो तो मिल भी जाती है, आँख होनी चाहिए आपके पास तो वो चीजें मिल जाती है। अच्छा, कोई ऐसा भंड हुआ हो आपकी दावत में जो आपको अभी भी याद हो, और स्पेसिफिकली जब शादी के बाद ना जब आपकी पहली दावत होती है और जब आपके घर में दावत होती है तो लोग आपसे बड़ा एक्सपेक्ट कर होते हैं कि देखते हैं कि कैसा बनाती है, क्या क्या खाना बनाती है। और कुछ याद है आपको? मेरे शादी के बाद तो ऐसे मुझे याद नहीं पड़ता कि फौरी तौर पे कोई ऐसा कुछ हो। मैंने तो जब से मेरी सास की डेथ हुई उसके बाद से जब चीज़ें ली, मैंने मिलाद लिया,
मजलिस ली, घर के डिनर्स करने शुरू किए। अदनान जब नहीं होते तो मुझे ज़्यादा आसान लगता है काम करना, क्योंकि हमारे यहाँ जब अदनान होते हैं तो उनको लगता है कि अब मैं ना इसमें कोई पार्टिसिपेट करूँ, इतने दिन से वो कहते हैं उसमें मैं उलझ जाती हूँ, क्योंकि दो लोगों के डिसीजन नहीं हो सकते। अब मैं मेरा डिसीजन होगा या अब मैं कहती हूँ अदनान में बहुत ये आपसे पहले से करती आ रही हूँ तो मुझे पता है मुझे कैसे करना है, तुम्हें समझ नहीं आ रही, इसको ऐसे रखो कि रख दो, अल्लाह आज भाई की सुन लो, बस सुन लो। तो ये होती है अदनान के हाथ की आई हुई चीज, अल्लाह ना करे वो टूटे या वो झड़ जाए तो बस मैं कहती हूँ वहाँ मेरी सांस रुक जाती है। अदनान इसी तरह दो बाजिस लेकर आए, वो सेट था बाजिस का, बहुत ही एक्सपेंसिव सेट था, मतलब और उन्होंने जब लाए तो कल के इसका ना जरा बेगम ख्याल रखिएगा। मैं कहा ये नहीं कहा बेगम इसको लॉकर में रखवा लो, ये नहीं उनका तरीका है, कहते इस्तेमाल करने की चीज, लेकिन भाई एहतियात भी करें ना, हराम के पैसों से थोड़ी चीजें आ रही है। और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप कोई चीज इतनी एहतियात से, मुझे अच्छी तरह मैं लंदन से एक क्रिस्टल की पूरी कैंडल लेकर आई थी, जेल कैंडल थी, मैं पूरे रास्ते ना मैं जब काम में हाथ में से यूं उठाए आप सोचे क्रिस्टल कितना हैवी होता है, उठाए मैं पाकिस्तान तक आ गई हूँ, सुबह उठी हूँ वो टूटी हुई, ये नजर लग गई होगी भाभी से मेरी वो कह रही मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारे कपड़े में ये लिपटी हुई कैसे, मैंने वो यूं उठाया वो चूरम, बस जिसके नसीब वो दुख मुझे ऐसा था कि मैं को 3 दिन रोती रही। मैं कहा भाभी मुझे इसका दुख नहीं है, बस मैं वो बता नहीं सकती जब तो आप ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि जरूरी नहीं होता कि चीज वो आपकी अटैचमेंट भी होती है, जमा करते हैं अटैचमेंट, आपने चीजें पसंद आपको मुश्किल से आई होती है, आपकी हर आप जो भी चीज लेते हैं आपकी उसके साथ अटैचमेंट होती है। हाँ ये कर लें अटैचमेंट तब तक जब तक आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। हमारे मेरे तो अब बच्चों के बच्चे आ गए। जब मैं कराची होती थी, मैं लाहौर जाती थी तो जाके फिर अपने सामने करवाती थी ना डस्टिंग, एक चीज उठाई है उसके ऊपर से नीचे का नीचे पीस रह गया, मैंने कहा ये क्या नहीं ये क्या अम्मा ने, वो सादिया कहते वो क्या करते थे, बच्चे ने तोड़ दिया तो फैसी ने कहा कि अम्मा कल आ रही हैं, इनको ऐसे ही रख के बस अम्मा आएंगी तो देख और अम्मा ने कुछ भी नहीं कहना। मुझे चीजें बर्तन टूटे चीजें टूटे मुझे कोई दुख नहीं होता। मेरे माँ बाप से मेरी ये शिकायत है कि अगर हमने कोई चीज तोड़ी होती थी और चले मैं अपने अब्बू से कहती थी अगर अम्मी की कोई चीज टूट गई है और अम्मी को नहीं पता चला तो मेरे अब्बू ऊंची आवाज में कहते थे अब अपनी माँ की क्या चीज तोड़ दी है, तो अम्मी की उधर कान कोई चीज तोड़ दी मेरी, तो वो दुनिया की किसी भी कोने में होती थी उनसे जूती भी आ जाती थी। अब उनके पोते या उनके नवास जो तोड़े, मेरा अपना बच्चा भी नहीं कुछ होता है, मोहब्बत से क्यों होता है, पता नहीं ये है। ये बता माशाल्लाह मेरे घर में माशाल्लाह 4 मुंडे हैं बस, एक सादिया का, 2 बड़े सलमान के, अब एक छोटे भैया नहीं, मैं कहती हूँ तोड़ो भाई, तोड़ोगे तो नहीं, मेरा ये वैसे तोड़ोगे तो नहीं आएंगे आएगा और लोगों का कारोबार भी तो चलना है। बच्चे अब एक दफा ले लिया तो ये कहती हूँ बच्चे तो चले तोड़ देते हैं ना, मगर बड़े भी कोई जान के नहीं तोड़ते ना। अब मेरी मासी से अगर कभी कोई मैं तो पहले उनको कह देती हूँ कि देखो बर्तन धो रही इसमें मेरी थोड़ी जान है, थोड़ा सा एहतियात से धोना, ये बड़ी मुश्किल से जमा किए हुए, तो कहती है मेरा दिल है, अच्छा टूट भी गया उससे, तो वो बेचारी कहती है कि हाँ कोई बात नहीं, जान के तो नहीं तोड़ा ना, तुम तो एहतियात ही कर रही थी, अब जो टूटने वाली चीज थी नसीब में नहीं थी वो टूट अच्छा हमारे यहाँ क्या होता है, फैसी को बड़ा बुरा लगता है, वो किचन का दरवाजा खुला आहिस्ता, अच्छा वो बर्तन आप धो रहे हैं तो आवाजें आ रही है ना, तो फैसी को लगता है आवाजें आ रही हैं, लड़ाई आ रही है, टूट जाएगा। तो जब मैं जाती हूँ ना तो फिर वो सब बड़े सुकून से हो जाते हैं। अब बाजी है ना, अब बाजी की जिम्मेदारी, अब हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। जिस तरह से बर्तन धो रहे थे जरा सा इतने भी और ये चिप हो जाता है, बेकार हो गया। अच्छा मेरी बात बढ़िया वही रह गई कि वो एक्चुअली हुआ क्या कि हमने ससुराल की दावत की तो अदनान का जो वास था मैंने कहा पीछे मेरी गलती, मैंने वो मेन टेबल से उठा के मैंने कहा अभी यहाँ सब बैठ के वो ना मैंने नीचे की तरफ से साइड पे सजा दिया ना एक कॉर्नर, इन्होंने मेरा घर देखा तो मैंने कॉर्नर की तरफ से, अब उसके आगे मैंने ना सीटी सी रख दी। अब जो इन्हीं का ही भांजा बैठा उससे गद्दी से वो जाके जो गया और वो डस करके टूट गया। अच्छा पूरी दावत एक जगह, मैं वहीं बैठी, मैं कहा हिना भाजी
ये अदनान लेकर आए थे। अच्छा ये वो तस्वीर है, ये मेरे देवर हैं। ये आप कुर्सी पे आपको नजर आ रहे हैं जो ग्रे कलर के फॉल है, इससे पहले ये कॉफी टेबल पे बैठे थे और कॉफी टेबल तोड़ दी थी। माशाल्लाह। मैंने कहा भाई कॉफी टेबल पे कौन बैठता है? कॉफी टेबल पे बैठ के कैरम खेला जा रहा है। थोड़ी देर फिर मैंने जब वो टूटने की आवाज आई, मैं ऊपर से मैंने कहा बेटा जुड़वा के दे दूंगा। मैं कहा अब ये जुड़ेगी, आप ये कुर्सी ले लें। ये मैं ये किस्सा अभी के अभी सुनवा दूं जो घबराहट का। उस वक्त मैं बैठ गई। फिर ये जो मूंछ वाले भाई हैं, इरफान भाई हैं, इन्होंने अदनान को फोन किया। आप सोचे कितनी मुझ पे दहशत होगी मेरे। कहते हैं हाँ यार क्या बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय करें यार। भाई वो बता रहा तुझे ये था वो जो तुम लेकर गए थे इटली से, व्हाइट स्पीकर में सुन रही हूँ। हाँ वो बतख बन गया। अब ये लोग आपस में ऐसी बात करते हैं। अदनान को समझ आएगी कि टूट गया। अरे भाई बतख बना दिया, आप देखना ऐसा ऐसा पूरा घर चिड़ियाघर बन जाएगा घर। तो बात वो आई गई हो गई, लेकिन उन तक पहुंच गई कि वो जो बात वो टूट के बतख बन चुका है। लेकिन वही मुझे बहुत होता है कि बाकी जब काफी सारे लोग आए ना, ये मेरा सिर्फ नुकसान होता है। नुकसान जैसे कारपेट पे और जैसे लाइट पे। ये मैं आपको अभी का किस्सा आपको बताती हूँ। अभी का किस्सा, अभी मेरे उसकी सलमान के बड़े बेटे की बर्थडे थी, तो हम लोगों ने घर पर ही मैंने उन्हें कहा पहली दफा, उन्होंने कहा माँ आप होस्ट बन जाएं, हम होस्ट हैं आप गेस्ट बन जाएं। मैंने कहा मैं तो बड़ी खुश हूँ। तो मुझे कुछ चीजों में लैक लग रहा था, लेकिन मैंने कहा मैं बीच में नहीं बोलूंगी ताकि इनमें कॉन्फिडेंस आए और ये भी करें। तो मेरी बहू ने माशाल्लाह सारा कुछ बड़ा जबरदस्त अरेंज किया। उसने स्टॉल लगवाए, गोलगप्पे, फिर वो पता नहीं क्या क्या चीजों के वो लगवाए। और अब जब मेहमान आना शुरू हुए, मुझे पता था, मैंने कहा मेहमान तो कोई 80 के करीब लोग थे, तो मैंने कहा ये सबकी सिटिंग तो कम होगी। तो उसने कहा कोई बात नहीं, कुछ ऊपर चले जाएंगे कुछ। मैंने कहा बेटा मेहमान एक जगह बैठने के लिए आते हैं, लेकिन हो सकता है, मैंने कहा इसकी फुफ्फो खाला वगैरह तो ये सोच रही हो कि चले वो ऊपर चले जाएंगे, ये इनके नीचे बैठ जाएंगे, बच्चे बाहर। तो मैंने फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। अब जब ज्यादा मेहमान आ गए ना, तो उसने मेरी तरफ देखा, कहती अम्मा वो मुझे लगता है जगह कम होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा अंदर बैठे। अंदर गई, कहती है मेन डोर खोल दूं? मैंने कहा हाँ खोल दो। फिर कहती है अच्छा तो अम्मा ये हमने तो कोई ना डेकोरेशन उठाई है। तो मैंने कहा बेटा क्यों उठानी है? तो सोफे सूफे लगे में बैठे। कहती है अच्छा तो कारपेट? मैं कहा कुछ नहीं होता सबको बेटा। अब आधे मेहमान अंदर बैठे हुए थे। अब वो जो उसकी फुफ्फो ऊपर से नीचे उतरी तो कहती हैं मैं तो सबा अपने दिल पे मैंने हाथ रखा हुआ था, ये वाइट कारपेट इस पे सब चल रहे हैं। तो मैंने कहा कारपेट होता ही चलने के लिए। सबा तुम्हारे दिल को कुछ नहीं हो रहा, वाइट कारपेट मेरे दिल को कुछ हो रहा है। और अब ब्रेक भी एक तो जब ब्रेक आती है मैंने कहा भाई खराब हो जाएगा दूसरा आ जाएगा। मैंने कहा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता करे। तो मेरी बहू कहती है उफ मेरा दिल ऐसे हो गया कि अब मैं जहाँ मर्जी बैठूं बैठाऊं। मैंने कहा भाई घर जो है ना सुकून के लिए, टेंशन के लिए नहीं। जी ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक लेने ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रुबाब जी आपके साथ कोई ऐसा भंड हुआ हो कि दावतों में कभी? एक दफा हुआ था मेरे साथ वो भंड, जो हमारी कराची की लाइटें जाती हैं, मगर मेरे यहाँ वो लगा हुआ था यूपीएस लगा हुआ था, तो उस दिन वो भी नहीं काम किया। और दावत ज्यादा लोगों की नहीं सब अचानक से चार्ज था, सब कुछ था, हर चीज कभी भी नहीं हुआ। और उस दिन वो भी नहीं चला और लाइट ने बोला मैं नहीं आऊंगी। लाइट ने बोला आज तो मैं लाइट बंद करूंगी। सबको इनविटेशन दिया, मुझे सब आए बैठे रहे। मैंने कैंडल्स जलाई, कैंडल्स का तो वैसे शौक है, कैंडल्स जल रही गर्मी थी तो कितना मतलब, और लोग इतने ज्यादा थे और मैं इतना एम्बेरेस अंदर। और सब कहते, सब मुझे कहते कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रबा, कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है जवेरिया तुम टेंशन ना लो। सब लोग थे हमारे ना बैठे हुए, जवेरिया कह रही तू क्यों टेंशन ले रही है, कुछ नहीं होता कोई बात नहीं। मगर मुझे एक वो था कि भाई अब खाना जब लगेगा और ये सारी चीजें होंगी, तो सारा खाना बनाया हुआ। तो मेरे पास ही घर के पास ही मेरी एक फ्रेंड और थी, तो उसने बोला मेरे यहाँ चलो।
اور کیا کہتے ہیں اس نے فون کرا, اس سے بولا کہ ہاں لائٹ تو ہے, تو اس نے بولا میرے تو جنریٹر بھی ہے تو کوئی بات نہیں تم لوگ, تو سارا ہم لوگوں نے مل کے کھانا اٹھایا اور کھانا اٹھا کے اس کے گھر پہ گئے, اور پھر میں لگ رہا تھا کہ میں وہیں شروع ہو گئی تھی ٹیبل لگانا اور یہ ساری چیزیں کرنا. نکالی ہوئی کراکری رہ گئی ہوگی گھر میں, میری نکالی ہوئی کراکری سب کچھ لگا ہوا سجا ہوا وہی رہ گیا. ہم نے کھانے ڈالے اور جو پتیلوں میں کھانے تھے وہ سب اٹھائے, تو مگر وہ بھی ہمارا ایک جو ہے نا فن تھا اور بہت مزہ آیا. وہ ایک یادگار رہ گیا کہ لائٹ, کیونکہ ہم کافی دیر تک ویٹ کرتے رہے, 2 گھنٹہ ہم نے ویٹ کرا کہ لائٹ ابھی آ جائے, بھوک چمک رہی تھی نا, چلو چلو وہاں جا کے نا کھاتے ہیں کھانا. تو پھر وہ ایک ایڈونچر بھی تھا اور مزہ آیا, بٹ یہ یاد رہے گا. کوئی ایسی چیز یاد رہے گی آپ کے. میرے ساتھ تو بڑا ایک انٹرسٹنگ سا تھا میرے لیے تھا, لیکن جنہوں نے کیا اس کے لیے تو وہ تو ڈر گئی تھی. میرے گھر آئی ہوئی تھی فرینڈس اور دعوت تھی ساری کزنس کی, فرینڈس کی, تو میں نے بہت ساری چیزیں بنائی. تو میری ایک دوست ہے وہ کہہ رہی تھی کہ میں کھیر بہت اچھی بناتی ہوں. چیزیں تو میں نے ساری تیار کر لی تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے تم بنا لو گی, میں بتا دوں کوانٹٹی. کرے نہیں نہیں میں بڑی بہترین بناتی ہوں, سب کو بڑی پسند آتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا اس نے بنائی, میں دوسرے کاموں میں لگی ہوئی تھی, تھوڑی سجاوٹ کر رہی تھی, باہر بھی چلی گئی, کچھ کام تھا. جب میں آئی تو مجھے کہنے لگی میں نے کھیر بنا لی, سیٹ کر کے اس کو رکھ دی ہے میں نے ٹھنڈا ہونے کے لیے. میں تو بڑی مطمئن, بادام پستے سب سارا گارنش کر کے نا کمپلیٹ. جب سرونگ کا ٹائم آیا تو میں نے کہا ساری چیزیں میں نکالتی ہوں, ساری چیز رکھتی ہوں. ابھی تو گیسٹ سے باتیں کر رہے تھے, کچھ گیمز وغیرہ کھیل رہے تھے. مدیحہ وہ دودھ کی طرح پتلی پتلی جیسے دودھ پی رہے ہیں, وہ بالکل گاڑی نہیں, بالکل بھی جیسے کھیر ہوتی ہے نا اس کی شکل ہی نہیں تھی. شیر خورما بھی تھوڑا گاڑا ہوتا ہے, وہ دودھ کی طرح تھی, اور وہ ٹھنڈی ہو چکی ہے, گارنش ہو چکی ہے. میں نے کہا یار اس کو چلو کھانے کے بعد میں آدھے گھنٹے کے بعد اس کو سرو کروں گی. کرنا تو ہے, میں اس کو کروں کیا, پکاؤں گی اور زیادہ چاول کا آٹا ڈال دوں, کارن فلاور ڈال دوں, لیکن اس کو ٹھنڈا ہونے میں دوبارہ ٹائم لگے گا. بالکل. اب میں کیا کروں, وہ تو کہہ رہی نہیں میں نے تو گاڑی بنائی تھی, میں نے تو گاڑی بنائی تھی. اب مجھے اتنا, یہ تو سوئمنگ پول بن گیا, مجھے اتنا. اب میں اس کو, وہ میری گیسٹ اور دوست میری, میں اس کو کیا بولوں. میں نے کہا یار تم مجھے بنانے دیتی, تم نے کہا میں بہت بہت زیادہ انسسٹ کیا تو میں نے دے دیا. میری سمجھ میں نہیں آیا, میں نے کسی بچے کو دوڑایا, اور بریڈ ہوتے نا ہماری روٹیاں, بریڈ میں نے منگوائی, فٹافٹ میں نے منگوائی, وہ منگوائی, اور اس کو ٹھنڈا ٹھنڈا میں نے ایک بھگونے میں ڈالا, اور سارے بریڈ کے پیسز کر کے نا اس کے اندر ڈال کے گھماتی گئی تو وہ تھوڑی گاڑی ہو گئی. اس کو پکانا بھی نہیں پڑا. پھر میں نے خود ہی اس کو سیٹ کیا, بادام پستے چاندی کے وقت دوبارہ ڈال کے. وہ میری عزت جو رہی ہے نا وہ مجھے آج تک یاد ہے. اب میں کسی کو یہ نہیں کرنے دیتی, میں کہتی میں خود کروں گی. تو کبھی کبھار اس طرح سے آپ کے ساتھ ہوتا ہے, اور دعوت کے ٹائم پر, اور شکر مجھے آتا تھا اس کو ہینڈل کرنا. کسی کو ہینڈل کرنا تو پھر اس دوست کی پہلے ہاتھ کی کبھی کھیر نہیں کھائی؟ میں نے نہیں کھائی, اس نے بڑی تعریفیں کی تھی کہ میں مشہور کی تھی, بڑی مشہور ہے, خود سے بڑی تعریف کرتے ہیں. تو میں نے سیمان کبھی بھی کوئی کہہ رہا ہو پرسنل ایکسپیرینس کے بغیر کچھ نہیں, جب تک خود نہ چکھا ہو اس کو آپ کبھی, میں میری زندگی کسی بڑے ایونٹ کے لیے. اچھا یہ تو چلے نا کہ ہم نے جو دعوتیں کی, ہم نے مینیو ڈیسائیڈ کیا, ہم نے کراکری کی چیزیں وغیرہ خریدی, سب چیزیں وہ لگا دی, لیکن جو اصل میں مرحلہ ہوتا ہے خاتون خانہ کے لیے وہ بعد میں تو صفائی. اس کے لیے ویسے پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ خود سر پہ کھڑے ہو کے کرتی ہیں, کیونکہ ایک ایک برتن آف کورس یہ جمع کیے ہوتے ہیں, اور نا خواتین کو شوق ہے کہ یار اتنی مہنگے مطلب لاکھوں کی کراکری ہوتی ہے, جب آپ اس کو سمیٹ کے رکھیں تو خود رکھیں. بس اسی لیے نا جو میری ہاؤس ہیلپ ہے نا ان کے لیے وہ ملٹی وائٹامن بھی رکھی ہوتی ہیں ٹیبل پر, مہنگی سے مہنگی. صبح آؤ پہلے یہ کھاؤ پھر کام شروع کرنا, کیونکہ وہ سب وہ کر رہی ہوتی ہیں. اور کوئی کسی کا کنارہ, وہ کہتی باجی چیک کر لیں, تو میں کہتی ہوں بس مجھے ہوتا ہے اسپونز جو ہے نا وہ اچھی طرح سے فائبر کلوتھ کے ساتھ صاف ہو, اور وہ اس میں چمک ومک اس کی خراب نہ ہو. تو ہر چیز اچھا آپ جتنے کانشیس ہوں گے نا اتنی چیزیں خراب ہوں. میں تو یہ نوٹ میں کہتی ہوں بھائی رکھ وہ ہر چیز, اور میں دیکھتی بھی نہیں ہوں نیکسٹ دعوت تک. ہاں میں بھی نہیں دیکھتی, سب چیزیں میری ہاؤس ہیلپ بہت اچھی ہے اور ٹرینڈ ہے, ان کی قدر کریں. میں کہتی ہوں جو آپ کے ہاؤس ہیلپ, اور ان کو سب سے پہلے کھانا دیں. ہم کیا کرتے ہیں کام کے بعد, نہیں میں تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کھانا کب کھایا. اچھا ہمارے گھر میں دعوت ہو اس کے بعد کھانا اتنا بچے, کھانا اتنا بچے. میری اس کو پتا ہے طاہرہ کو کہ فریج میں باجی کو صبح کچھ نہیں چاہیے, وہ سب بانٹ دے گی, چوکیدار کو بھی, اس کو بھی, اس کو بھی. میں نے کہا بوٹیاں ہوں نہ ہوں, پائے ہیں, کچھ بھی ہے, صرف ناشتے کے لیے ایک چھوٹا ڈونگا رکھنا ہے,
उसके अलावा कुछ कोई नान रोटियां कुछ आजकल सब अवेयरनेस बहुत लोगों में आ गई है कि वो कहते हैं आप खा लो, कहीं फेंको ना। पहले तो इतना जाया होता था, लेकिन आजकल मैंने बहुत लोगों में 4 दिन के बाद बासी करके आपने देना, फ्रेश दे आप खाना। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो जो आपने सफेद रंग की कालीन है, मैं कभी भी उन्हीं के बारे में सोचती हूँ। क्या मेहमान है, क्या मेहमानदारी इतनी होती, कभी कोई सालन गिर जाए? नहीं कुछ सालन वाला नहीं। मेरा ड्राइंग रूम में व्हाइट कारपेट है, पूरा फर्नीचर व्हाइट है, तो वो अभी मीरब ने कोई पिछले इतवार उस पे चाय भागी मम्मा डांटेंगी तो नहीं। मैं क्या हुआ क्या? चाय गिर गई। मैं कहता तुम ड्राइंग रूम में चाय क्या पी रही थी? वो मैं कुछ बस वो गिर गई। मैंने कहा अच्छा अभी बात खत्म करो। मैं कहा जमीला उठाओ, उसे उठा के छत पे गए, फौरन उसको धोया। नहीं अब तो पता है आपको कारपेट और सोफे क्लीन करने वाले आ जाते हैं। मैं भी यही बोलने वाली थी, धब्बा पकड़ा जाता है, उससे भी हो जाता है साफ। मैंने फिर भी व्हाइट जो है ना मदिया, उसको निकाला। मेरे बेटे ने भी एक दफा व्हाइट सोफे पे चाय गिरा दी थी। वो तो खैर बड़ा है, उसने तो भी चाय गिरा दी थी। और मैं जब गई हूँ 2-3 घंटे बाद घर में, मैंने तो तब देखा है वो अपने हिसाब से टिश्यू से साफ करके व्हाइट कलर का सोफा और उस पे चाय बड़े लेकिन ने गिरा दी। और उसने मुझे बताया भी नहीं। मैं जब घर पे पहुंची तो मैंने बोला ये एक पीला धब्बा ये किस चीज का हिला रहे? तो कह लगा मम्मा चाय गिर गई मुझसे। तो मैंने बेटा मुझे एटलीस्ट बता तो देते, मैं तुम्हें बता तो देती कि इसको करना क्या है। बट मैंने वो क्लीन वालों को कॉल करी, वो अगले दिन आए, उन्होंने पूरा सोफा वॉश किया, वो वाकई नया कर दिया। ड्राई भी हो जाता है, वो ड्राई भी कर दिया उन्होंने, वो नया हो गया। 3 माह बाद मैं अपने पूरे घर की अच्छी तरह से करवाती हूँ, तो मैं उनको बुलाती हूँ, सब बिल्कुल सही कह रही है कि वो बिल्कुल नया हो गया। मैंने बोला कि तो बिल्कुल साफ सुथरा बिल्कुल नया कर दिया, वो धब्बा था ही नहीं चाय का उसमें। अच्छा मुझे तो वैसे ना मेरा जो बच्चा ना जब वो कार्रवाई डालता ना, मुझे इस वक्त पता ही चलता, बाद में पता इतने से टाइम में भी उसको मिला ना कि वो किसी तरह से ड्राइंग रूम में एंटर हो जाए, उसके हाथ में पेन हो, वो मेरे नहीं फोन सोफों पे कुछ बना देता है, एलिफेंट अपनी तरफ से वो कीचियां मीचियां बना के। मैं देखी थी ये कब आया था, ये इसने कब किया था? तो वो अच्छा फिर मेरे घर में कोई मुझे फालतू चीज नजर आ रही है ना, तो मैं तो ताहिरा से ये मुझे नजर ना आए, ये ले जाओ। तो वो फालतू चीज से आपकी क्या? अच्छा फालतू चीज से मैं बताती हूँ। अभी ऊपर नेहा सेट कर रही थी, तो एक सेट ही थी मेरी, आप समझे कोई 30-32 साल पुरानी होगी, ओक वुड की। उसको मैंने डार्क पेंट करवा लिया था। काफी अरसे से थी, कभी मैं उधर रख देती थी, कभी। अभी जब ऊपर गए तो मैंने उससे कहा ताहिरा, मैंने कहा ये तो तुम ले जाना। नेहा कहती अम्मा क्या दे रही क्या? मैंने कहा ये सेट ही बेटा, रहने अभी मैं फैसला करती हूँ। अच्छा बेटा वो कालीन 4 पड़े में है, वो ले जाना, छोटे बड़े वो जो उसका पूरा घर, वो कहती है उसने घर में ड्राइंग रूम बना लिया है आपने जो चीजें जो सामान लिया, कहती ये सेट ही रहने दें, मैं इसको अब वो सेट ही मैंने भेजी फर्नीचर शॉप पर, उन्होंने उसका असल रंग निकाला, रीडू। मैं कहती हूँ वो इतनी खूबसूरत लग रही, तो मैंने कहा ये तो नेहा बड़ी अच्छी लग रही। कहती है माँ अब तो ये भी ताहिरा के घर पहुंचा देती। मैट्रेस थे, कहती है मैं नए बेड लेकर आई हूँ, मैट्रेस थे फालतू जो कि अब 35-40 हजार के मैट्रेस है। मैं कह रही हूँ 1,27,000 का। ये मैंने कहा नजर ना आए, ले जाओ। तो कहती है आपने तो 2 मैट्रेस। मैं कहती यार उनके भी तो घर में जरूरत है ना, जाने दो। तो मैं कुछ अपने लाउंज को चेंज किया, कुछ छोटी मोटी चीजें, तो जितने वो फ्लावर्स थे और वो मैंने ऐसे उठा दिए उधर से। मैंने उसे कहा कि ये तुम ले जाना। तो कहती है, मैंने कहा ये जो डस्टिंग करते हैं ना, वो फिर उन चीजों को मैं ही देखूं, साफ करूं, धोऊं। तो मैंने कहा गंदे मट्टी होती है, मुझे बहुत बुरे लगते हैं, तो छोड़ दो बस। यानी कि बिल्कुल हो रहा नहीं है कि चीजें संभाल के। हाँ नहीं संभालने, मेरे घर में स्टोर करने की रिवायत ही नहीं। मुझे भी शदीद नफरत है। अब फिर मैंने काम भी नहीं आता। अच्छा मैंने स्टोर में ही रहती है। अच्छा वो मैंने मदिया, मैंने कहा कि ये भी तुम ले जाना। फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा ये तो ऊपर टेरेस सेट करना है इन्होंने, बच्चों का वो प्ले एरिया बनाना है। फिर मैंने कहा ये ना लेके जाना। कहती बाजी क्या हुआ है? मैंने कहा नहीं ये छोड़ दो, ये अब जो चीजें मैं निकालूंगी ना एक स्टोर में रखती जाओ, क्योंकि उसने ऊपर टेरेस सेट करना है। क्या क्या उसमें सारी चीजें जरूरत पड़ेगी, वरना मेरे तो बस चले, मेरे पास इतने बेडशीटें आती हैं, मैं तो गिफ्ट देती हूँ। मैं कहती हूँ भाई ले जाओ। नहीं और अल्लाह उतना ही दे रहा है। मैं बताऊं जितना आप देते हैं ना, और जो आप कंजूस होते हैं और जो जितनी बचत और जो नहीं करते, आप देखिए उनके तंगी रहती है। देखिए जो और अल्लाह मियां गैब से देता है आपको, आप जितना देते हैं आप कहते हैं अच्छा ये चलो और आ गया, अल्लाह ने और भेज दिया। हमारे यहाँ तो ये है कि रिस्क है ना,
अनाज है, अनाज में कीड़ा क्यों डाला है? बिल्कुल बिल्कुल, ताकि आप इसकी इसकी जल्दी जल्दी बोना शुरू हो जाए। हाँ, वरना तो लोग इसको जखीरा कर जखीरा ना शुरू कर दें। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी एक इंडिकेशन है कि आपको मैं बताऊं, आप जूते बांटना शुरू करें। लोग जूते नहीं बांट, आप जूते बांटना शुरू करें। मैं बहुत बांटती इतने जूते आते हैं, जूते मतलब पहनने के लिए जूते आते हैं और कपड़े अच्छा, पहले मैं क्या करती थी, अच्छा ये शिफॉन का दुपट्टा है, ये प्योर शिफॉन ट्राउजर, ठीक है, शर्ट। फिर मैंने सोचा यार जिसको मैं शर्ट दे रही हूँ, हाँ, तो उसकी शर्ट पड़ी रहेगी। अब वो कहती है शर्ट की जितनी कीमत है उतनी कीमत का मैं शलवार और दुपट्टा लेके जो बनाऊं, तो ये पड़ी रहे। मैं प्योर हो कुछ हो, मैं आंखें बंद करके पूरा ये है ना, ये मैं पूरा दूंगी। इसमें ये नहीं कि मैं दुपट्टे के साथ सूट बना लूं, नहीं, मैं पूरा दूंगी। फिर मुझे इतने आते हैं कि मुझसे संभाले नहीं जाते। ये करके देने में बरकत है, ये कुदरत है और ये कुदरत का निजाम है। बस समझने की बात है, समझने की बात है। मेरी अलमारी में सिर्फ उतने कपड़े टंगे होते हैं जितने मुझे पहनने होते हैं। पहन लिए, वो सबको पता है। पहन लिए ना साजिद जी, 3 दफा पहन ली। हाँ बेटे, तस्वीरें भी चली गई, हम ले जा रहे हैं। अब तो मुझे पता ही नहीं होता कौन से कहाँ गए। तो वो एकदम हाँ ठीक है। मुझे बहुत खुशी है ना कि आपकी जो नीसेस वगैरह उनको भी आपके कपड़े आराम से आते हैं, उनको मेरे कपड़े आराम से आते हैं। अब जो बहुएं माशाल्लाह बाजी की आई हैं, वो उठा के खाला आ रहे, हाँ ले जाओ। तो ये चीजें हमारे यहाँ बड़ा, और हमें भी सुकून होता है कि यूटिलाइज हुई, हमारे यूज हुई। और भी मैं तो कहती हूँ इसका तो माशाल्लाह खानदान है। मगर जिनके नहीं भी, मैं तो कहती हूँ आपके इर्द गिर्द बहुत लोग होते हैं जो कि मुंह से नहीं बोलते हैं, हमारे पहन के खुश होते हैं। PR की कितनी चीजें आती है, कॉस्मेटिक्स, क्रीमें, मैं तो हर रोज एक कर रही होती हूँ ना, वो सब मैं डंप करती जाती हूँ। जो आता है मैं कहती हूँ जो पसंद है ले। मैं खुद हाउस हेल्प में उसकी बेटी का पूरा जहेज मेरे घर से निकला है, क्योंकि वो इतने कॉस्मेटिक का पूरा वो चीजें थी। मैं कहा ये मैंने तुम्हें बॉक्स बना दिया, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू चादरें तुम्हारे सामने ही आती है, उनके सामने ही चीजें आती है ना। तो वो मेरे यहाँ व्हाइट के अलावा कलर बिछता नहीं है, तो मैं अब दे देते हैं तो मैं रख जरूर लेती हूँ, उसकी उनको रील भी बना के भेज देती हूँ, लेकिन फिर वो मैं इसी तरह, तो उसका ऑलमोस्ट जहेज मेरे घर से अल्लाह पाक ने वसीला बनाया। एक बात मुझे बताएं, जैसे मैं माशाल्लाह से अल्लाह पाक के घरों के इनको रखे, इतने माशा में देखती हूँ कि घर में जो बड़ी फैमिलीज होती हैं, इमीडिएट फैमिली के लोग इतने बड़े, मेरी फैमिली तो जो छोटी सी है और हम जमा करते करते में हो जाता है। तो आपके भी जैसे बिल्कुल छोटी सी फैमिली है, एक ही बेटा है, माशाल्लाह इनका भी खानदान है। मैंने तो ससुराल के बाद एंजॉय की ईद कि अच्छा यार ऐसी ईद होती है, इतने रिश्तेदार होते हैं, सब मिलते हैं, तो इतना मजा। मेरी अम्मी वाला साइड से मेरे माशाल्लाह 5 मामू, अम्मी, नानी, ये लोग सारे फैमिली, खालाएं वालाएं, तो वो बट अगर यूं साइड पे आए मेरे ससुराल में, तो मेरे हस्बैंड भी इकलौते हैं, मैं भी जो है इकलौती हूँ, बेटा भी इकलौता है। आगे वो फैमिली छोटी छोटी बेटे से कहना कि तुमने आगे मैंने ये बोला है उसको, कहने लगा हाँ आपने एक पैदा करे, मुझे बोल रही कि 4 पैदा करो। कहते वाह वाह आपने, तो वो मिस करता है सिबलिंग को, बहुत मिस करता है। अच्छा दूसरी बात है जो मुझे याद पड़ता है, जब हमारे घर में जब गेट टुगेदर होता था तो फुप्पो आके ना, ऐसा नहीं कि अम्मी किचन में काम कर रही है, खुद भी कर रही होती थी, छोटी बेबी खाला वो सब आके ऐसे जिम्मेदारियां बढ़ती थी, नाश्ते का के टाइम ऐसे ही है, तो वो पता नहीं चलता, वो एक मिसिंग होता है। भाई बड़ी ईद पे हमारे सब आते हैं मेरे यहाँ, क्योंकि जब कुर्बानी तो सबको पता है गोश्त से सादिया को तो बड़ी वहशत होती है, मुझे बस ये है कि मुझे गोश्त के करीब ना जाना पड़े। तो मेरी भाभी अल्लाह से जिंदगी से सलामती समीना, वो उसका काम है कसाई के सामने बैठ के कटवा के हिस्से बनवा के, बाजी का काम है उसको धुला के बिरयानी चढ़ जाती, कलेजी बन जाती बहू में, और मैं सुकून से बैठ के हाँ बाजी काली मिर्च वाली वो चापे भी बना इतना मुझे मजा था, क्योंकि उनको पता है इस दिन ये कुछ नहीं कर सकती। मैं घर की सजावट करवा ले, सफाइयां करवा ले, गोश्त मुझे पता नहीं, एक बचपन से और स्टिल अब तक मैं तो गोश्त खाती नहीं हूँ। हाँ, तो वो मैं गोश्त नहीं मैं वैसे ही गोश्त नहीं खाती, ना बीफ ना गोश्त मैंने कभी नहीं खाया। और मैं मटन बनाती हूँ, बीफ तो मेरे घर पे कभी भी नहीं बना, और मटन में बनाती हूँ, और मैं टेस्ट भी नहीं करती, खाना मैं टेस्ट करके नहीं बनाती कभी भी, मुझे लगता है कि बरकत नहीं होती। तो फिर बताता कौन है आपका कि मैं खुद अंदाजे से, और मैं चम्मच से भी नहीं डालती, तो मुझे जो ऐसे डालती हूँ, तो मुझे लोग कहते हैं बता दे भाभी, जैसे लोग कहते हैं रेसिपी, मैंने भैया आई एम सॉरी मैं ये नहीं बता सकती कितने चम्मच है, क्योंकि क्वांटिटी कितनी है, क्योंकि मैं कहती है मैं पत्ती
चीनी, जो भी मैं नमक वमक सब ऐसे ऐसे करके डालती हूँ। मुझे नहीं पता कि चम्मच मैंने 3 डाले या 4 डाले, मैं अंदाजे से डालती हूँ। कल परसों मैंने बनाया शलजम, पालक और गोश्त और साथ चावल घुटा हुआ। तो सादिया आई तो कहती है खाना खा के तो उधर बैठी, उसे भूख लगी हुई थी। मैंने कहा चल, मैं नमाज पढ़ रही थी, उसने खाना खा लिया। कहती है अम्मा एक बात बताएं। मैंने कहा अम्मा आप खाना इतना ज्यादा क्यों बनाती हैं? मैंने कहा अब उनके घर में 3 फैमिली मेंबर है, तो वो मैंने कहा बेटा माशाल्लाह इतने लोग, अम्मा ये फिर भी बहुत ज्यादा है। तो दूसरे दिन अब मुझे वहम होता है, मैं थोड़ी चीज नहीं बना मैं कहती दे तो वो ज्यादा बेहतर है, कम ना हो आपको तो अच्छा। लेकिन रात में मैंने सोचा जरूर, मैंने कहा कह तो सही रही थी, अभी भी इतना बचा हुआ है। दूसरे दिन मैं सुबह मैंने कहा मुझे नाश्ते में पराठे के साथ शलजम और वो दो। कहती बाजी थोड़ा सा पड़ा हुआ है। मैंने कहा क्या रात तो इतना था? कहता है नहीं, वो बच्चे उठे रात में उन्होंने खावा लिया। फिर मैंने सादिया से कहा, मैंने कहा जो रातों को जागते हैं ना और फिर ऑर्डर करते हैं तो कुछ आता नहीं है। फिर वो कहते हैं अच्छा यही खाएं। तो वो इस तरह से बनाना खुला, मुझसे कम चीज टेस्टी कभी बनती नहीं। मैं कहती हूँ में बरकत भी है, आप है ना बनाए तो खुला डुला बनाए। नहीं, लेकिन मेरे मियाँ कहते हैं आजकल बहुत बड़ी महंगाई है, देखा करो। हाँ थोड़ा बहुत महंगाई है अपने हिसाब से, जितनी आपकी फैमिली है, जितना आप लोग खाते हैं। और ये जो आपको गोश्त की बात कर रही है, हमारे यहाँ कुर्बानी होती है, ज़िबा होके तो अंदर आ जाता है, खाल वाल उतर के जब गोश्त बनता है ना, वो मैं बैठी होती हूँ 4 घंटे 5 घंटे। मेरी समीना करती है, मैं बैठ के बोटियां ऐसी बनवाती हूँ, जिनके घर जाता है वो कहते हैं कुर्बानी का गोश्त कटवाना, इतना साफ सुथरा गोश्त, और उसको पता है कौन सी बड़ी जगह की, और उस पे फिर पैकेट्स पे लिखवाती है ये बिहारी का है, ये यस का है, ये एक एक ये पसंदे बनवानी है ये क्योंकि हमारे घर में ना मैं और मीरब कितना अच्छा ना ड्राइवर गोश्त खाता है ना चौकीदार गोश्त खाता है। मैं कहा जी वो मटन नहीं खाते भाई, नहीं बाजी बस दाल चावल। अरे अजीब मजाक है, तो हमारे तो हर चीज बचती है बकायदा। मैं कहती बाजी अच्छे वाले भाभी पैकेट्स बना के ना और लिख भी दीजिएगा, उनको पता हो कि कौन सा वाला। हमारे भी कुर्बानी का गोश्त नहीं रखते हम लोग, सारा बांट देते हैं। कुछ लोग वरना पहले अपने फ्रिज भरते हैं। सबसे आपको पता है ये जो डीप फ्रीजर्स और जो फिश का बिकते हैं, कुर्बानी के दिनों हमारे यहाँ तो सिर्फ कुर्बानी और 6-6 महीना लोग चलाते हैं गोश्त को। मैं हैरान हूँ, 6-6 महीना और वो सब बनता है और दावतें चल रही होती है। वो कुर्बानी के गोश्त के लोगों के घरों में दावतें चल रही होती है, स्पेशली रखते ही बकरीद के बाद ही दावत है। और जब कहते हैं वो खराब होने वाला, चलो भी रखो एक दावत। मुझे बताएं आप लोग के ससुरालों में आप लोग के हाथ के बनाए हुए कौन सा मीठा बहुत मशहूर है, जिसके स्पेशली आपसे कहती हूँ कि प्लीज भाभी ये बना? मेरा ये बेसन का हलवा। बेसन का हलवा? मैं बेसन का हलवा बड़ा अच्छा बनाती हूँ, और शीर खुरमा। शीर खुरमा वो ऐसा लगता है जैसे खोया डला हुआ है उस पे। मैं उसको पकाती बहुत हूँ, बहुत पका। मेरा पतला नहीं होता शीर खुरमा, मेरा गाढ़ा शीर खुरमा होता है। और सारे मेवे डाल देती हूँ पहले, और वो उसमें पकता रहता है। तो वो अगर मैं चढ़ाऊंगी वो 5 किलो का, तो वो सिर्फ 2 किलो भी मुश्किल से रह जाएगा अगर वो। हाँ तो मैं उसको इतना काटती हूँ। हाँ वो और मेरा बेसन का हलवा। बेसन ये आप चीनी में बनाती, शक्कर में बनाती हैं? नहीं, मैं चीनी में बनाती हूँ और घी में। हाँ। आप अच्छा एग पुडिंग जो है वो मैं बहुत अच्छी स्टीम जो होती है वो मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ यार। मुझे और वो हर किसी से नहीं बनती, उसकी क्वांटिटी होती है, अंडे, चीनी, दूध, जैसे बेकिंग की तरह होती है। बेक तो नहीं होता वो, बट स्टीम में बनता है, लेकिन वो मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, परफेक्ट बनता है। तो लोगों को मेरे हाथ का बड़ा अच्छा लगता है। हम शो में बनाते हैं, इसके लिए ओवन की जरूरत है, टाइम लगता है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैं सास से ना वो अल्लाह बख्शे होने के मैं ये सीख लेती, वो बहुत मजे की बनाती थी। अब पता नहीं कितनी तरह की पुडिंग शादियों में पहले होती थी, बहुत पहले वो टेस्ट नहीं आपको कहीं मिलता। तो ये बड़ी मैं बनाया करती थी प्रेशर कुकर में। अच्छा वो स्टीम से ही बनती है। वो पहले पतीले में बनाते, मेरे साथ पहले ओवन नहीं होता था, वो पतीले में रख के बनाती थी, ऊपर पानी रख के उसमें बनाते हैं पतीले में। मैं बनाती हूँ खीर, मेरी हाथ की खीर। मैं मीठे वैसे ही बहुत है, मैंने बनाने ही मीठे सीखे थे सबसे पहले। और शीर खुरमा मेरा बहुत पसंद है, मेरा भगार वाला होता है शीर खुरमा। अच्छा, वो बहुत ही सबको फेवरेट है। और मेरे यहाँ तो ये चीज का सारे मेवे का, सारा मेवा जो है उसका भगार लगता है।
وہ کیونکہ میرے جو ددیال یعنی کہ بابا جی کے بچے ان کو میوہ نہیں چاہیے تو ان کے لیے پہلے الگ سے بغیر میوے والا نکالتی ہوں, اس کے بعد بگار لگاتی ہوں. وہ شیر خورما باقاعدہ پیک ہو کے بھی جاتا ہے, تو میں عید کی دعوت پہ نا 2 پیکٹس بھی بنا کے رکھ دیتی ہوں, مجھے پتا ہے یہ بعد میں ڈونگوں سے نکلیں گے, بہتر ہے ابھی بنا دو. تو اسی طرح یہ رجب کی جب وہ ہوتی کھیر, وہ بھی 20 کلو 22 کلو میں خود بناتی ہوں, کسی کی نہیں ہاتھ کی پسند. اچھا جی, میں بناتی ہوں آم رس. آم کا وہ سب بچوں کو ہوتا ہے کہ بس یہ پھپھو کے یہاں جا کے کھائیں گے, اور اسے بہت ٹھنڈا کر کے فریزر میں رکھ کے وہ اوپر بلائی ڈال کے وہ بہت پسند ہے. یہ کیسے بنتا ہے بتائیں سب؟ بہت آسان ہے. دودھ ہوتا ہے, کریم ہوتی ہے اور آم ہوتے ہیں, اور بیچ میں آپ میں بہت کم چینی ڈالتی ہوں کیونکہ آم ویسے میٹھا, لیکن یہ اچھا بنتا ہے سندڑی آم سے, بیسٹ. جب مونچھوں والے آم آ جاتے ہیں نا پھر نہیں اچھا بنتا. بس ان کو ریشہ کا کوانٹٹی ان کی صحیح ہونی چاہیے, اور یہ اتنا تھک ہو کہ آپ چمچ کے ساتھ کھا سکیں, تو اس سے اچھا تو کوئی مجھے لگتا ہے میٹھا ہی نہیں ہے. اور جو یہ بات کر رہے ہیں نا شیر خورما, اب جیسے اب سیزن آیا ہے تو میں ڈرائی فروٹ لے کر آتی ہوں ڈھیر سارا, پھر میں پیکٹ بناتی ہوں, پھر میں سب بچوں کو ان کے پیکٹ دے دیتی ہوں. یہ آپ کا پیکٹ ہے, یہ آپ کے, سب بچوں کو پیکٹ دے, اور ایک پیکٹ جو ہے نا وہ میں اپنے پاس رکھتی ہوں جو کہ گاجر کے حلوے میں اور گجریلے میں ڈالتی ہوں. ایک سوال آیا کہ ڈرائی فروٹ میں آپ چلغوزہ منگواتی ہیں؟ نہیں احتجاج کیوں کھائیں اتنا مہنگا تو. لیکن میری ہمیشہ سے عادت ہے, میں ڈرائی فروٹ ڈھیر سارا لاتی ہوں, اور لا کے میں سب بچوں کے نا پیکٹ بنا کے ان کو دیتے ہو, اپنی کبرز میں رکھیں, 2 دن میں ختم کریں, 3 ماہ میں ختم کریں. مگر میرے ہسبینڈ کو میووں میں صرف پسند ہی چلغوزہ ہے, میرے میاں کو کوئی ڈرائی فروٹ نہیں پسند, صرف پسند ہی اس کو چلغوزہ ہے. اتنا مہنگا چلغوزہ آپ کو تو دیکھنے کے لیے پیسے لگیں گے. ہاں بالکل, آپ کو پتا منہ دکھائی کے پیسے لے رہے ہیں آج کل. اتنا مہنگا چلغوزہ کر تو قدر کریں ایسے لوگوں کی جو کہ آپ کے گھر آئے اور آپ کے لیے چلغوزہ لے کر آئی. میں اپنے کوئی دوستوں کو سنا رہی ہوں, یہ میں اپنے کوئی دوستوں کو سنا رہی تھی کہ جتنے آپ نے مہنگے کیک لے کے جانے, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. سبا جی آپ کا, سعدیہ آپ کا, آپ شو میں آئے, شیف عربی بھائی. دیکھیں جو دعوتیں ہوتی ہیں نا, یہ ایک بہت مل بیٹھنے کا طریقہ ہے کہ آپ اپنے پیاروں سے ملیں, ان کے ساتھ مل بیٹھیں, اور میرے خیال سے بڑی ضرورت ہے آج کل کے ٹائم میں. جب کہتے ہیں نفسا نفسی کالم میں ڈپریشن بہت ہو رہی ہے اور آپ کو لگتا ہے کوئی آپ کو سن نہیں رہا, یہ دعوتیں ہی وہ دعوتیں ہیں کہ جب سب اپنے نا کونوں میں بیٹھ جاتے تھے کھانے کی بات ہے لے کے, تو اپنے گھر میں جتنی دعوتیں کریں آپ کا دسترخوان بھی اتنا وسیع ہوگا. اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ تمام تر لوگوں کے دسترخوانوں کو وسیع کرے. آگے رجب کی نیاز بھی آ رہی ہے, تو اپنا خیال رکھیے گا, شاد رہیے, آباد رہیے. اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے, زندگی بھی تو کل ملیں گے. اللہ حافظ.